Hello, and a very warm welcome to India Voice Fest 2023. Today is day 6 of this 10-day mega festival of the Indian voiceover and dubbing industry. जैसा कि आप जानते हैं, India Voice Fest 2023 is India's first and only and biggest voice industry and dubbing industry festival और एक ऐसा मंच है जहां पर वॉइस और डबिंग के पर्सनालिटीज को हम ऑनर करते हैं, हम इस काम को सेलिब्रेट करते हैं, हम इस काम का जश्न मनाते हैं। आज है 10 दिन के इस महोत्सव का छठा दिन। इंडिया वॉइस फेस्ट is conceived and curated by yours truly, Darrpan Mehta, produced and organized by Sugar Mediaz. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsors Audio Magic, our industry partners are MnM Talkies, Gulmohar Media, G-Corp Media, and Aural Arts. Our proud supporters are Neshma Academy of Acting and Voice Acting, Surabhi, Javeri, Vyas, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders Private Limited. दोस्तों, आज की शाम बहुत खास है क्योंकि आज हो रहे हैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेशंस। पहला सेशन जो है इट्स कॉल्ड द ऑडियो प्रोड्यूसर्स राउंड टेबल, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के तीन वेटरन पर्सनालिटीज जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 ऑडियो प्रोडक्शन कंपनीज को, which is Gulmohar Media, G-Corp Media and Aural Arts। और इनके 3 representatives, इनके कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं, and we are going to have a very interesting conversation about the life of an audio producer। और उसके बाद we have Amir Azhar Khan, an Urdu language exponent, जो एक उर्दू लैंग्वेज की वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, जो शायद पहली बार इंडिया वॉइस फेस्ट के मंच पर पिछले 6 सालों में पहली बार we'll have an Urdu language workshop and I'm supremely excited for both these sessions। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले सेशन की शुरुआत के पहले let's take a quick promo break। Let's see what lies ahead। I've told you already, but let's see that in the promo, and on the other side I will join you with these 3 veterans of the industry। Planet's Petty Foundation, initiated by former journalist Portia Putatunda, embarked on an extraordinary journey from offering free tuitions under a tree in Kaza
between the years 2020 to 2022 to establishing a self-funded free boarding English medium school in Komik, the world's highest village at 15,500 feet in Spiti Valley of the Indian Himalayas. Enduring severe climatic challenges, Komik remains covered in snow for 6 to 7 months with sub-zero temperatures year-round. Portia's determination, fueled by personal savings, laid the foundation for this challenging venture. Starting with 40 children under the open sky, the foundation's journey evolved into a 6-room school building, defying the extreme Himalayan conditions. Today, this school not only educates but also shelters 10 underprivileged children, offering them a chance to escape the cycle of poverty and illiteracy. In a place where carrying water uphill for kilometers is a daily reality, Planet Spiti Foundation stands as a beacon of hope. It testifies to the indomitable human spirit and proves that positive change can thrive even in the most challenging environments. India Voice Fest is proud to partner with Portia and Planet Spiti Foundation towards a better future for these wonderful children. Check, hello, check. ओके एवरीवन वेलकम बैक। आप में से कई लोग शायद जानते हैं कि इस बार हमने वॉइस फॉर अ कॉज नाम का एक सोशल काज शुरू किया है। प्लैनेट स्पिति फाउंडेशन नाम की एक स्कूल है जो शायद विश्व की सबसे हाईएस्ट फ्री रेजिडेंशियल स्कूल कही जा सकती है। इनके लिए हम डोनेशंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से और बहुत सारे लोगों ने दिल खोल कर डोनेट किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, everyone who donates an amount of 5,000 rupees towards this cause, they get a free diamond pass from India Voice Fest along with an opportunity to come on stage and get a picture clicked with all their favorite voice artists and a specially signed poster by these veteran artists along with a little gift from India Voice Fest. तो अगर आप भी इस इनिशिएटिव में सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर यू विल सी द QR कोड ऑफ द स्कूल एंड यू कैन डायरेक्टली डोनेट टू देम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की शाम की एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत करते हैं। वी हैव एन एक्साइटिंग सेशन लाइंड अप कॉल्ड द ऑडियो प्रोड्यूसर्स राउंड टेबल। सो विदाउट any more time being spent on anything else, let me welcome on the screen our first speaker, which is Gurdeep Wadwasiyal from G-Corp Media. That's a very handsome looking Gurdeep. That's no problem. Gautam Keswani, that's Gautam Keswani, I guess. We got you on the screen first. Gautam, welcome to India Voice Fest once again, and Gurdeep, welcome to you too. और अब लगे हाथ अब दोनों आ गए हैं, तो let's have Sumit also on the screen. G for Gautam, G for Gurdeep. Hi Sumit, hi Gautam, hi Darpan. Hi guys. आप लोगों का एक बार तो इंट्रोडक्शन हो चुका है और ओपनिंग के दौरान, पर मैंने सोचा कि कई लोग हैं जो शायद आज पहली बार जुड़ रहे हैं और इट इज ओनली फेयर दैट वी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू एवरीवन who is watching the stream today or who's going to watch it in times to come. Gautam Keswani from Aural Arts. Gautam is the managing partner of Aural Arts.
He's a seasoned audio and music professional who's worked extensively on mainstream Indian and international projects as a sound engineer, musician, music producer, sound designer, dubbing writer, dubbing director. Now, this guy wears literally many, many hats. He believes that every experience offers new learnings and insights, and an approach which has helped him manage a successful business today, which is Aural Arts, a creative audio and localization company that strives to deliver an effective and nuanced product or service to leading brands every time. And let me also tell you that Aural Arts is a subsidiary company of Myra Multimedia Enterprises that is engaged in dubbing, voiceovers, audio production, and a lot of oral services, and they cater to some very big brand names. So that's Gautam Keswani for you. Welcome, Gautam. Thank you so much. May I also add that Gautam's company Aural Arts is also an industry partner. So are G-Corp Media and Gulmohar Media. I will now move on to introduce Gurdeep Wadhwa Sial. This gorgeous, charming lady in front of you is a creative and energetic person with lots of ideas and opportunities in her pocket. Whatever little I've known of Gurdeep in the last few weeks, I can vouch for that she's one hell of an enterprising lady. She's armed with many credits. She's been an RJ, she's an MBA, she's a speaker, she's a trainer. They conduct a lot of wonderful voice workshops as well, besides a lot of other corporate trainings. Her passion for voice acting and voiceover training led to the creation of G-Corp Media in 2006. G-Corp Media started as a voiceover artist service provider and gradually was built into a voice, visuals, and workshops hub engaged in providing a one-stop solution for all the audio, video training and content needs. वैसे Gurdeep is also a prolific voice artist. She is the voice behind Vande Bharat Express. मुझे ऐसा लगता है जब भी हम गुरदीप से बात करते हैं तो वो हेलो के साथ भी ये कहती हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है. So she's made it her say. आपका स्वागत है. Welcome to Vande Bharat Express. तो क्या होता है गुरदीप जब घर पे कोई आता है या कोई धोबी आता है या दूध वाला आता है तो उसको भी कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है. मैडम लास्ट मिनट टिकट बुकिंग करनी है, अवेलेबल नहीं है टिकट्स. आपकी तो आवाज है. मैंने कहा मेरी आवाज उसमें है, इसका मतलब नहीं है कि रेलवे वाले अंकल मेरे चाचा जी हैं. नहीं बट ये एक्चुअली दिस इज अ रनिंग जोक. हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ भी ये जोक है. मैं क्योंकि मैंने अपने करियर का एक बड़ा भाग टेलीविजन चैनल्स की ब्रांड वॉइस के तौर पर गुजारा है, तो हमारा एक ऑडियो प्रोमो प्रोड्यूसर हुआ करता था. He would joke, and I have shared this even at India Voice Fest in some earlier year. He would say that दर्पण के घर पे जब दूध वाला आता होगा बिल के पैसे मांगने, तो he would say भैया कल आना. तो सामने वाला कहता है कि कल कब आऊं? Then he would say कल रात 8 बजे. So ये आई थिंक ये कुछ चीजें होती है जो हमारी आदत बन जाती है एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट. वो खून में आ जाता है वॉइस ओवर करना. Even to my daughter, if I am making her study any subject, a lot of time, even for maths, it's like this. 1 + 2 = 3. So she's like, Mama, आप normal भी बोल सकते हो. Why do you have to, I'm sorry. मुझे लगता है right modulation इसमें भी होना चाहिए. Absolutely. Welcome, Gurdeep. Welcome once again to India Voice Fest 2023. And now let me introduce everyone to this handsome guy in front of us on the screen. और मैं बात कर रहा हूँ सुमित पाठक की. सुमित एक बहुत ही जाना माना नाम है हमारी इंडस्ट्री के, और ये आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से. सुमित is an absolute veteran. He's an actor, he's a voice artist, and today he's a successful entrepreneur with his own media company, Gulmohar Media. Sumit has been a part of the creative trade and craft form for more than 3 decades now, and he started acting at a tender age of 6, and then he went on to become a very successful child artist. आप में से जो लोग देख रहे हैं, कई लोग I'm sure you'll wonder कि यार इनको तो हम जानते हैं, but you will never know कि he is also a part of the voice industry. Sumit has a huge fan following, especially for, if I'm not wrong, for your character, for Hero, the role that you played as a hero. आज भी मैं देखता हूँ सुमित की Instagram feed पर people are writing कि वापस कब आएगा ये show and all that. So Sumit is a very, very, very popular name, but he always likes to keep a low profile. I think his work does most of the talking, and he's been a part of films, shows, television, as an actor. Too many to list here, but today he is in his role as
an entrepreneur, as an audio content producer, although I do understand that Sumit's company, Gulmohar Media, is a 360 degree complete production company offering services in audio and video in all formats. But today, since we are calling it the Audio Producers Roundtable, तो हमारा आज का जो introduction है या आज के हमारी बातचीत है, it will hover around our work as audio producers. And I, in my own limited role as an entrepreneur, I also head a company called Sugar Mediaz, and this is what we do. We are hardcore ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूसर्स. तो हम सब शायद कुछ गम गलत करेंगे अपना एक दूसरे का और समझेंगे एक दूसरे से कि why are we so mad to do what we do. So let me start with Gautam. So I don't want to get into that cliche thing of ladies first, and I think it's very, very passé. And let's start with the youngest guy on the screen, or let's start with Gautam. Yeah. Did you say youngest? Did you say youngest? I will, you know that joke. You know that joke here. Okay, then give a seat to the oldest girl in the bus. तो कोई आगे नहीं आता है. तो इसके लिए let's do this. Fellow entrepreneurs, fellow voicepreneurs, the term which I use very often. Of course, how did I miss out on that? Gurdeep is very fond of using the word voicepreneur. So yes. Yeah. So Gautam, why don't we start with you? And today we are focusing on at India Voice Fest. Every session is about one specific area. Why don't you very briefly tell us how did you land up becoming an audio content producer? If I could give you a minute to tell me, let's hear it. Right. So first of all, hi everybody. I am Gautam. I head the company called Aural Arts. So I mean, if I want to talk about my journey, right from I think childhood, I was very interested in music in general. I used to have, I used to learn keyboards and pianos right from the get-go. I think, and credit to that goes to my mom, because my mom is a wonderful singer. She's been a play, actor. She used to act in plays and all. So that's something that I think that creative side of thing is something that I picked on from her. And, then slowly and gradually, once I did my graduation in business administration, that's a completely different route that I took at the time. But then after I did my college, I realized that, I want to do something in the music, in the audio industry, because I was so fascinated about, with it. And that's where I jumped into this sound engineering field, the music production field. I learned some of it. I did a course, and then slowly and gradually, I landed up in Mumbai. I'm actually originally from Delhi. But I landed up in Mumbai, started working initially in the dubbing sector, in the dubbing industry, where I used to work as a sound engineer. And slowly and gradually, I picked on multiple skills, as Darrpan, you said in my introduction, that I've carried out multiple roles, being in this industry where, it comes to dubbing writing, dubbing direction. As a music producer, I did a few years in freelance. And then eventually, yes, I got associated with Myra Multimedia, and they offered me this partnership to be a partner in their audio department, in their audio field. And now here I am, managing an entire company that creates audio content. Lovely, Gautam. Thank you for that very brief, but still a very detailed introduction. So nice to know that you have such a wonderful background in terms of an education. That's an important, because I will have a follow-up on that in terms of how important is it to not just be street smart, but also have have education under your belt. So, but that we'll come to that later. But for now, Gurdeep, why don't you tell us again in just a minute about your journey to become an audio content producer, especially? Honestly, I come from a typical Javeri Punjabi background from a pind.
And for me to come here on this platform in itself is a big, big aspirational thing. So first of all, thank you, Darpan and India Voice Fest, for having G-Corp Media as industry partners. Coming to my background, like I just mentioned, coming from a typical Javeri Met Punjabi background, but I always had the inclination of taking the mic, going on stage, and whether debates, elocution in school, everything was something, it used to give me a lot of happiness. And this went on till I was in college. And when I told my father that I want to go to Mumbai and do something in the entertainment industry, Pat comes a reply कि शायद लड़की को हीरोइन बनना है, टिपिकल पंजाबी हाउसहोल्ड में ऐसी बातें होती हैं. So मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे maybe I'll see what I want to do, but it has to be something which is related to broadcasting and creative field. So my father throws a challenge at me. He gets me a list of top 20 B schools and he says, अगर तुम्हारा किसी भी बी स्कूल जो इस लिस्ट में है हुआ और अगर वो कॉलेज मुंबई में हुआ तो जैसे कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. सो वैसा कुछ हुआ मेरे साथ. एंड आई केम टू मुंबई. आई गॉट थ्रू वन ऑफ वेरी गुड कॉलेजेस. एंड while I was in college, through a common friend, I was introduced to somebody in the Star Studios. And that time, in the year 2003-4, Star Studios में National Geographic Channel का Hindi dubbing होता था. And I was told that, why don't you go for an audition? So, like a typical me, every time I used to say yes to everything that used to come my way back then also. So I went to the Star Studios and ironically, my first dialogue was, मैं चांद पर जाना चाहती हूँ, मैं चांद को छूना चाहती हूँ. But my first audition, I failed. Coming from theater background or stage background, I didn't have anybody to really tell me that hold your horses, apna, just hold the throw when you are a voice artist. It is slightly different than being on stage as a theater actor. But shayad, मुझे कोई ठीक से उस समय guide करने वाला नहीं था. And I failed the audition, which was very disappointing. Then I went back to my hostel, VCR par, DVD par, I used to practice, read out aloud, and I went back and I cracked. So my journey started with being a character voice and then eventually doing narration also. So अगर आपने ऐसी आवाज सुनी हो, इनके सर पर ऐसे बाल होते हैं जो इन्हें पानी और जमीन दोनों में सांस लेने में मदद करते हैं. बहुत ज्यादा नमक है, इतना नमक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें बुरा ना लगे तो थोड़ा खा लेती हूँ. So you had character voices and narrator voices. But when you do MBA from a decent college, everybody tells you or pushes you to go for a campus placement. And you have all the top brands and companies coming you, offering you all kind of top packages. So for me, at that time, I remember getting through a very good MNC, but everybody walked up to me and said that, Gurdeep, you are an out and out creative person, going through, why would you want to take an MNC bank, but I wasn't sure at that time whether voiceover would Gurdeep, give me yeah, I was about to say मुझको अगर mic relax. दे दिया तो 1 मिनट में बताना मुश्किल है. I'll just take quick 10 more seconds to say that after that I worked for a corporate. Hear me out. You should be on news debates. हमारी बचपन से ही आदत है. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि होल्ड 1 मिनट का समय बड़ा मुश्किल है मेरे लिए. सॉरी. कंट्रोल पाजी कंट्रोल. तो ये जो है ये अनअब्रिज्ड वर्जन हो रहा है किताब का. अनअब्रिज्ड ये जो है. हाँ, तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि अभी हम कॉलेज पहुंचे हैं. अभी जो है हम मैनेजमेंट कॉलेज पहुंचे हैं हमको. हाँ, तो आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने G-Corp मीडिया की शुरुआत की, कॉलेज के बाद आपने बहुत काम किया और उसके बाद बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जो आपने G-Corp मीडिया की शुरुआत की, आप तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, है ना? आप तो शुरुआत तो वॉइस ओवर एज एन इंडिविजुअल. सो द होल पॉइंट हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रादर व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आपका ये मोटिवेशन क्या था, या फिर हाउ डिड यू थिंक ऑफ converting that into a business offering many services? So if you could just tell us that. Yeah. I'll just take quick 10 seconds to do a fast forward of what I just said earlier. So when you're working for a corporate field and when you are deciding to quit this and do something which is related to the voiceover field and not necessarily only being a voiceover artist, then you have to look at all the avenues.
So a call from a vast company changed that thing for me. I got a call saying that they are looking for voice artists who could be the brand voices of, say, Airtel, Aircel, and other service providers. And I was auditioned by this vast company based in Delhi. And that was the time where they said that, would you like to, help us sourcing other artists, or help us, setting a studio, or help us, not only doing Hindi, English for you, but other languages. And that was when the idea of being a voice coordinator and G-Corp Media, was born. That's interesting. So, Okay. Mhm. so as a voicepreneur, like I said, I looked at all the opportunities back then also, that one. Okay. Yeah. No, that's amazing. That's amazing. So what you're saying is that it was a very natural progression or a natural transition from being a voice artist to becoming an entrepreneur, voicepreneur that you say. So that's amazing. Yeah. So we'll come to more interesting follow-ups on this about your life as an audio content producer. Because I'm sure there are so many interesting and challenging things that happen for all of us in a field which the person on the street probably doesn't even know exists, which is another big challenge for us. Coming to Sumit, Sumit, you've been, like we know, you've been a part of the craft from a very, very young age. I would like to believe that हम सबसे ज़्यादा तजुर्बा इस काम का creative performing art का, चाहे as an actor हो या as a voice हो, आपका रहा है. So why don't you tell us about your transition from a talent to running a company which works with talents? सबसे पहले डबिंग की शुरुआत मेरी कैसी हुई, बिकॉज वी वर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. जब ये शुरू हुआ हमने तब से शुरू किया. तो उस वक्त ट्रेंड वॉइस एक्टर्स नहीं थे. आज हमारे पास स्कूल्स हैं, आप जैसे लोग सिखा रहे हैं लोगों को. उस वक्त प्रेफरेंस हुआ करता था आर्टिस्टों को, क्योंकि आर्टिस्ट ऑलरेडी अपने काम को डब करते थे फिल्म्स में या टेलीविजन पे. सो और बच्चे उस वक्त बहुत कम थे. So that's how I was chosen ke yaar, you try, can you do it? And that's how it started, the voicing journey. But going ahead, my acting career was always my priority. But then came a time when I was in an age where I couldn't fit an elder's role or a child. I was in the teenage. And at that point of time, there was only television and films. And either you have to be really, really ready to go for a 20-year struggle, which you can click tomorrow, or you can maybe not have anything for the next 20 years. That's how freelancers work in the industry. Mm-hmm. And then I took a decision that I will first set up my business and maybe in the industry, and then look forward to my acting career. And that's how I started looking for opportunities. And it started with video editing studio. Somebody was producer was looking for a studio, and that's how I started it. And फिर उसके बाद video में हमने काफी time बहुत काम किया. So video production has been a very major part of our life. And being from the voicing industry, and with the OTT boom, we started the voicing journey. And for the last 4 years, it's been great. Amazing, Sumit. So this is interesting. One thing that I was really looking forward to ask, being an audio content producer myself, I thought, let me ask each of the speakers today, what are some of the most, how does your family take to what you do? What are the very common misconceptions that your family or friends have? I'll give you a simple example. As a voice artist, for the longest time, I would have people in my family कि करते क्या हो? And I would say बोलता हूँ. So they would say बोलते तो हम भी हैं. काम क्या करते हो? So आप लोग भी कहीं ना कहीं as audio content producers, you're creating something around the voice. So I would like to know from each one of you. Let's start in the reverse order now. Sumit, आप बताइए. You've had a very long innings, and still you have a very long way to go. कि कितना भी बड़ा नाम हो जाए आपकी इंडस्ट्री में, बट घर परिवार सोशल जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके बीच में what is that common misconception about what you do? For me, luckily, it was not a misconception, but most of them were eager to know how do I do it, or how, So that's interesting. Yeah. So because they had seen me on television doing acting, so they knew that media mein he's doing something.
in voicing, luckily I was voicing for many major characters at one point of time, and so the whole thing was कि whenever we are in a group, अरे रिची रिच की आवाज निकालना, अरे ऑसवर्ल्ड की आवाज निकालना. So I was more of a entertainer, that's what the thing has been with me. Okay, interesting. So you're saying that, yeah, I guess this doesn't really apply to you as much because you're also a very known face. हम ज्यादातर लोग चेहरे हैं या आवाज, सिर्फ आवाजें हैं, या फिर एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर शायद कई लोग तो आवाज भी नहीं है. सो गुरदीप, आप बताइए. अगेन, हमने सुमित से शुरुआत की, हु इज अ फेस एंड अ वॉइस. वी आर कमिंग टू यू, हु इज प्रिडोमिनेंटली अ वॉइस एंड देन अ प्रोड्यूसर. तो व्हाट इज इट दैट यू गो थ्रू इन योर एवरीडे लाइफ in terms of misconceptions or myths, the myths that people have? A lot of time, when people meet you and when you tell them that you are the voice behind, and suddenly you see their eyes going up. When you tell people, जब भी आपका phone connect होता है, and a voice which greets you, which says, इस caller tune को copy करने के लिए star और not दबाएं, शुल्क लागू, to copy this caller tune press *9, charges apply, and people like, oh, ये आपकी आवाज है. And like how you said, even my potential father-in-law, then my actual father-in-law now, God bless his soul. In fact, he had also asked me, शादी के टाइम की, बेटा काम क्या करते हो? And when I said उस टाइम पर कि अंकल मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और ये करती हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन बेटा काम क्या करते हो? So to a lot of people, it was, and it still is, a lot of my family members back in Punjab still thinks कि really 2 लाइन बोलने के 5,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, मुझे भी दो ना ये काम, मैं भी कर लूंगी. So this is actually a myth for a lot of people when they think it's so easy to just hold the paper, read few lines and get paid. So I'd say this is one of the biggest misconceptions for a lot of people wanting to get into the industry as voice artist. It is a lot of hard work. And, yeah. I agree. I can't agree more, गुरदीप, क्योंकि अगर ये कारण नहीं होता कि लोगों को, जैसा हम हिंदी में कहते हैं कि खाने का काम नहीं है और बोलना खाने का काम नहीं है, और अगर लोगों को ऐसा नहीं लगता तो आज जो सैकड़ों हजारों लोग इस काम की तलाश में या इस बिजनेस को करने आते हैं बिना इस चीज का सोचे कि क्या उन्हें क्राफ्ट आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेड दिस, दैट दिस क्राफ्ट इज अंडररेटेड एज अ स्किल. So I agree with you, Gurdeep. And Gautam, अगर मैं आपकी बात करूं, so while you are a musician, you're an audio engineer, so you are more on the technical side, and then you also have a role as someone who is a captain of the ship of your company, as a managerial role. तो आप बताइए कि what are the things that you have to go through in terms of these misconceptions from your family, friends? Right. So I mean, obviously, see, एज अ वॉइस आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से वॉइस आर्टिस्ट फिर भी, अगर आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट आप किसी को बताएंगे कि यार मैं अपनी आवाज देता हूँ एक कैरेक्टर पे, किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर को, तो फिर भी शायद आई वुड से कि 1% शायद लोग समझ जाएंगे. लेकिन मेरे केस में जब मैं किसी को बताता था इनिशियली कि मैं साउंड इंजीनियर हूँ और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और मैं एक स्टूडियो में बैठता हूँ, तो मेरा जो काम था, एंड ऑब्वियसली कलेक्टिवली जितने भी साउंड इंजीनियर्स और जो से इवन डबिंग राइटर्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनका काम समझना थोड़ा सा शायद ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर जनरल पब्लिक, क्योंकि वो थोड़ा बैक एंड पे काम करते हैं. वॉइस फिर भी एक फ्रंट एंड पे दिखती है या सुनाई देती है फॉर दैट मैटर, बट हमारा जो काम है वो बैक एंड पे होता था. तो उसको समझना मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए काफी डिफिकल्ट होता था. ऑल्सो आई वुड से आई थिंक पहले, मतलब एक समझ लीजिए 15-20 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था, आई थिंक कलेक्टिवली हम सब ने जब शुरू किया था, तो उस टाइम पे फिर भी एक इतना उस चीज का अवेलेबिलिटी नहीं था कंटेंट का, या लोग उतना देखते नहीं थे, उतना कंटेंट भी नहीं था जितना कि आज है, और स्पेशली विद सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. तो आज जो है वो फिर भी लोग, आप बोलोगे कि यार मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करता हूँ, मैं अपनी वॉइस देता हूँ डबिंग के लिए या वॉइस ओवर्स के लिए, आज फिर भी शायद इज अ बेटर पॉइंट जहाँ पे लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सोशल मीडिया में और सब में, और इतना कंटेंट फैल गया है अभी विद OTTs एंड एवरीथिंग. So I think it's still better today. We still have to go far. I would agree with Gautam. पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की होगी, maybe 2003, 4, 5 में,
क्रेडिट भी नहीं मिलते थे डबिंग आर्टिस्ट को. बिल्कुल. कार्टून्स किसने डब किए हैं, अनलेस यू टेल देम दैट यू आर द वॉइस, इवन क्रेडिट्स में भी नाम नहीं आते थे. लेकिन अब देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक हाउ गौतम सेड, यू हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ योर ओन आल्सो, योर ओन पेज. You can go on Instagram and post you are the voice behind this commercial, or you are the voice behind this character, and people are calling them big influencers like Sonal, Mona Ghosh. All these peoples are big name, not only in terms of behind the scenes, but people are loving them as the voices of these characters. Yeah. Absolutely. पहले के मुकाबले I think we've come a long way. But on a side note, जब गौतम ने कहा कि 15-20 साल पहले जब हम collectively हमने शुरुआत की थी, I wanted to imagine सुमित sniggering कि भाई जब तुम 15-20 साल पहले तुम लोगों ने शुरुआत की थी, मैं ऑलरेडी लेजेंड बन गया था. That's too much. I know when Sumit had come to my studio first time and I was like, पर आप तो, he's like, मैं डबिंग नहीं करता हूँ. So that was my reaction. पर आप तो नहीं देखा है. Sumit, again, I'm coming back to you as a follow-up to what Gurdeep just said. Actually, there's an interesting question there. क्योंकि हम सब में से you are that one person here who is also a very known face. So I want to know from you, for a moment we'll keep the audio producer angle aside, but between being a face and between being a voice, what do you take more pride in? Might be a difficult question actually, but मेरा तो bias हमेशा voice की तरफ रहता है, इसके लिए I'm asking you. As a creative person, see, it's the satisfaction of the job ultimately, So I really can't say that video to a certain extent, because people recognize you more. So gratification-wise, it's something which I can say, it's exciting when people recognize you. Instantly, your work is recognized. For example, in voicing industry, probably you have to say that this is done by me. Now being in the social media circle where people are, voice credits are being given, and there are fan pages being followed for voice artists. So people know, but ultimately I would say I can't say one thing, but it's the satisfaction of the job. मैंने अगर बहुत अच्छा कुछ कह दिया जिससे मुझे संतुष्टि मिल रही है, तो I think उस वक्त वो voice मेरे लिए ज़्यादा important है. या मैंने कोई बहुत अच्छा perform कर दिया stage पे, तो उस वक्त मेरे लिए वो ज़्यादा important है. So yeah, but it's nice to know, Sumit, एक time था जब, I'm sure you will agree with me, कि एक time था जब a lot of people who came into the industry would be like, हम तो actor हैं और free time में हम dubbing कर लेते हैं. Today people take pride in the fact that they are voice artists, and I'm supremely proud that for the last 25-27 years this is the only thing that I've done, and I'm a hardcore thoroughbred voice artist. So ये बड़ा अच्छा है. अगर हम ऑडियो कंटेंट प्रोडक्शन की बात करें, तो एक सवाल जब से हमने ये प्लान किया, मेरा था कि ये सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा. So I'm sure you will agree with me कि when you're working with a lot of voice artists as a producer that all of you are, कई बार ये बात निकलती है, I feel sometimes the audio producers are at they are at the rough end in terms of they always get the brickbat कि ये लोग ये नहीं करते हैं, उनका प्रोसेस नहीं है, पेमेंट्स टाइम पे नहीं देते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें होती है. पर मुझे कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मैं दोनों रोल प्ले करता हूँ, हम में से कुछ लोग, सुमित भी और गुरदीप भी, कि हम वॉइस आर्टिस्ट भी हैं और हम ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूसर्स भी हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो तरफा है कि सब लोग आर्टिस्ट की तो बात सुनते हैं, पर मैं चाह रहा था कि आज इस मंच पर लोग ऑडियो प्रोड्यूसर की भी बात सुने कि आपकी क्या शिकायत है. तो मैं शुरू करता हूँ, मुझसे ही शुरू करता हूँ, क्योंकि अब मौका मिला है तो चौका मार ही देते हैं. मेरी शिकायत ये है कि जितनी जिम्मेदारी ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूसर की होती है, मुझे लगता है कि उतनी ही जिम्मेदारी एक वॉइस आर्टिस्ट की भी होती है. और मैं वॉइस आर्टिस्ट होकर ये बात कह रहा हूँ. तो अगर छोटी सी बात है, अगर आप कहीं कोई काम करते हैं, तो फिर इनवॉइसेस वक्त पर देना भी आपकी जिम्मेदारी है. और एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर मेरी टीम से मुझे ये शिकायत आती है कई बार कि हमारे कई आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत वक्त लगाते हैं इनवॉइसेस भेजने में, तो और उस बात को कोई तुल नहीं देता है, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. आई स्टार्ट विद गौतम. गौतम, आप बताइए कि एज एन ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूसर, व्हाट आर योर ग्रीवेंसेस? For a change, you want to know the producer's grievance. नहीं,
you hit the nail in the head. जो आपने बोला वो एकदम मतलब I think everybody will align with that. The major I think एक जो सबसे बड़ा एक I won't say issue but हाँ जो एक challenge face होता है वो हाँ कि project खत्म हो गया है because from our point of view we need to close our accounts. So उस केस में हम लोग कभी कभी किसी आर्टिस्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि यार इनवॉइस दे दो बट दैट नेवर हैपेंस. इनफैक्ट इट बिकम एक साल हो जाता है और इनवॉइस नहीं आया होता एंड देन अगेन फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देन वो एक साथ जब एक बड़ा चंक निकलता है आपके अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे वो तो दैट इज अ चैलेंज दैट वी हैव टू फेस. सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज सारे आर्टिस्ट मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज टाइम पे बिल दीजिए. जब मांग रहे हैं तो उसके 10-15 दिन लेके आप बिल दे दीजिए. सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. बट उसके अलावा yes, I think our entire fraternity is very understanding, very sweet in that ways. So जो हम बोलते हैं जो I think क्या है हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोसेसेस भी होते हैं which they need to understand. So वो प्रोसेस सब लोग समझते हैं और उस हिसाब से सब काम भी करते हैं और अपना पेमेंट्स भी लेते हैं. फेयर. आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट. गौतम, गुरदीप आप बताइए, आप एक बहुत ही डायनामिक आउटफिट रन करती हैं और अलग अलग तरह के काम करती हैं. सो व्हाट आर योर कंसर्न्स? मैंने पर्सनली थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपने ऑफिस में और द वे आई रन माय ऑफिस आई हैव मेंटेन स्पेशली नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट्स is to create some kind of backup in my account. A lot of times I've seen कई बार clients की payment delay होती हैं तो producers भी time पर नहीं दे पाते हैं. But at my office I have ensured that if I commit that 30 days या 45 days में आपका payment आएगा, I create that backup, where I don't run out of funds. Because I genuinely feel कि artist की वजह से ही हम हैं. चाहे मैं खुद आर्टिस्ट हूँ या जो आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में आते हैं उनकी वजह से ही ये बिजनेस खड़ा है. सो पेइंग आर्टिस्ट ऑन टाइम आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और आई एम श्योर ऑल ऑफ अस ट्राई आवर बेस्ट. लेकिन कई बार मैंने पर्सनली आई वुडंट वांट टू टेक सम नेम्स बट कई बार मैंने देखा है कई आर्टिस्ट थोड़ा मे बी दे आर लिटिल रिस्ट्रेंट. एक या दो टेक्स से ज्यादा एक्स्ट्रा टेक्स नहीं देंगे वेयर द क्लाइंट इज सेइंग कि मेरे को पसंद नहीं आया इफ दे आर वर्किंग रिमोटली. सो थोड़ा सा बीइंग एन आर्टिस्ट आई कैन टेल यू क्रिएटिव प्रोसेस में अच्छा करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. और आप कितना अच्छा करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप टेक्स देते जाइए. यू ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम एजेंसीज हु विल से फोर्थ लाइन के थर्ड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है. सो दे विल वांट यू टू डू मल्टीपल टेक्स. लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के लिए भी अगर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाकर करने की जिम्मेदारी उनके अंदर भी हो, सो इट्स अ विन विन प्रोसेस. Especially when it comes to that artist management. बाकी प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है आर्टिस्ट को भी प्लीज आ जाओ टाइम पर. क्लाइंट लास्ट मिनट कैन चेंज द टाइमलाइंस. सो ये डेली के आई थिंक ऑल ऑफ अस फेस दीज इश्यूज. बट आर्टिस्ट से बना कर रखना, क्लाइंट से राइट नेगोशिएशन, राइट प्राइस, आई थिंक दैट्स वेयर वी कम इन पिक्चर. या दर्पण. Absolutely. Sumit, do you want to add to that? I think most of the areas they've covered, but apart from artist, एक अच्छी टीम एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक हमें एक ड्रीम 11 टीम बनानी बहुत जरूरी होती है फॉर एवरी प्रोजेक्ट. द राइट काइंड ऑफ राइटर्स, द राइट काइंड ऑफ इंजीनियर्स, द राइट काइंड ऑफ आर्टिस्ट. तो ये जब तक ढांचा एक बहुत अच्छा ढांचा नहीं बनता है तब तक आई थिंक वो प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं बनता है. So I think they've taken the point where artists are there, but ये पूरी टीम जब तक अच्छी नहीं बनती है अपना प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बनता. So it's creating that dream team which takes most of the time at my end. Yeah, I think that's a lovely answer to a question that I wanted to ask. Ki what does it take to really create a strong audio content company? I want to go back to something interesting that Gurdeep said some time back, which is something that I very, very strongly believe in. She spoke about creating a financial backup so that you are able to meet your obligations towards your vendors or your artists. I could not agree more. और मैंने हमेशा ये माना है कि when you call yourself an audio content producer, तो as a producer you are a business owner. तो जब आप अपने प्रॉफिट्स अपने वेंडर्स के साथ या अपने आर्टिस्ट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके साथ ऑन अ वर्क फॉर हायर रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है टू बेयर विथ योर लॉसेस और विथ योर लैक ऑफ फंड्स.
तो एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है कि एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर इट इज़ हमारी जिम्मेदारी है कि that we fulfill our commitment to somebody who has already rendered his or her service and has gone away. So मैं तो ये मानता हूँ at least at Sugar Media हमारा ये ध्येय रहता है कि the moment you complete something with us, उस वक्त से ही we are due to compensate you or to give you your remuneration because it's a it's a two-way street और ये बड़ा ज़रूरी है. तो I'm glad that as content producers हम इस बात को कर रहे हैं तो ऑन दिस फोरम क्योंकि यूजुअली इस तरह की बातें नहीं होती हैं नहीं है. वी डोंट हैव कॉन्वर्सेशंस इन द इंडस्ट्री. आई बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी और यही बात खाई जा रही थी. शायद वन ऑफ दीज थिंग्स इज द रीजन व्हाई हम सब ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हम सब और सैकड़ों लोग इंडस्ट्री के जुड़ गए हैं. और ये सारी बातें आर गोइंग टू बी हियर फॉर एवर. दे विल रिमेन हियर for posterity, kahin nahi jane wali hai, and I'm so happy and so thankful to all of you. It's a magic mantra. I have seen this work with me always for last, every year of me being a content producer. When you pay people on time, you will see your reputation going up. You will see artists going out of their way to help you meet deadlines. Sometimes random deadlines hoti hain clients ki. When you pay them on time, they are ready to go out of their way to help you meet clients. Absolutely, Gurdeep. I completely agree with you. The next thing that I wanted to talk about, again, the bad word in the industry right now, you know what I'm talking about, the two-word beast, as I call it. आप तीनों, इतना काम कर रहे हैं. What kind of impact are you seeing with artificial intelligence? How is it impacting you? If I may start with, let's start with Gurdeep. Gurdeep, आप अलग-अलग तरह का काम करती हैं. You're not just focused into one genre. So how is it impacting you? What is it doing? What can you tell us about it? See, Darpan, you already had a session on AI a few days back. AI, at this point, I won't want to disappoint a lot of people, but it is something which is going to hit us, or in that process, I would say it is a newly born child. We will have to see how it shapes up, or what size, or what kind of probably parameters it is going to have, or the way it is going to affect us. But as per me, it is definitely going to affect us, and we need to maybe we need to rework on our skills to meet the industry demands. And I think for dubbing artists, it might or for that matter, even for voiceover artists, we might have to reinvent our skills. We might have to do multiple things, have a plan B, C, D, E in place in times to come. But it is definitely going to affect the industry. And I would say we can actually have another chat discussion on AI. I heard that entire piece last time, but as per me, it is definitely going to affect the industry. Yeah, so I'm happy that you put it out very straight. And yeah, absolutely. It is not going away anywhere. We have to exist with it, and we need to find relevance with its presence. Gautam, what do you think? You have a dominant involvement with dubbing and localization, from what I understand. तो और उस काम में भी धीरे-धीरे we are seeing a lot of intrusion, if I may use that word. So, what are your views? Right. So yes, I mean, definitely AI is something that is coming and almost has come, and it is affecting in terms of the number of projects, or the number of people, or the number of clients that are opting for AI-based solutions. And this is something that obviously we हम बीच में एक बार एक स्टूडियो प्रोड्यूसर्स एक मीट था जहाँ पे हम गए थे, and we had spoken about this, that feeling scared or revolting or just negating this thing or trying to fight it is not the solution here. In fact, we need to adapt this change, much like any other technological change that has come in the past, say 500 years for that matter. मतलब एक टाइम था जब हाथ गाड़ी चलती थी, उसके बाद मोटर गाड़ी आई, and people had to evolve, people had to become drivers, they had to learn driving. In the same way, अगर मैं अपने इस इंडस्ट्री, म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं, तो एक टाइम था जब सारी चीजें जो हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा म्यूजिक जो है वो हाथ से बजता था, इंस्ट्रूमेंट से बजता था, रिकॉर्ड होता था.
but there came a time where VSTs came in. जब आप एक piano से आप कोई भी instrument बजा सकते थे, and you can create entire songs from that. And there were a lot of people at that time, instrumentalists, that actually adapted. They became music producers and not just instrumentalists. And they adapted to that change, and they were successful in that. So I think in the same way, we need to adapt. We need to learn this technology. We need to, open our hearts and arms and learn it and adapt it. And we need to I think in fact, even the dubbing artists, the dubbing producers, directors, writers, everybody just needs to learn this new technology and work with it. Absolutely. That very well. You put that out very well, Gautam. We cannot shut our eye to the elephant in the room, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से वो गायब नहीं हो जाएगा. और we need to embrace it, if for lack of a better word, adapt to it, and become relevant in the face of it. Like you said, through the history of time, technology has evolved. Things have changed, some things have perished, but humans have never perished. So when it comes to human talent, you need to adapt. You need to become better at what you do. Sumit, what would be your thoughts? You're someone who's seen the industry for more than 3 decades now. आपने हर दौर देखा industry का, और कितने परिवर्तन देखे हैं. अगर हम रिकॉर्डिंग की भी बात करें तो अब बीटा था, हाई 8 था, फिर आपका डैट आया, फिर स्पूल में होता था. मुझे याद है, मैं जब रेडियो करता था तो स्पूल एज एन एंकर ऑल इंडिया रेडियो में तो स्पूल प्ले होता था, सीडीज आए, फिर तो दुनिया चल रही है, दुनिया खत्म नहीं हुई है. So do you think that we should have such a pessimistic outlook, or do you agree with Gautam that we need to take it head on? No, of course we need to take it head on, in terms of we need to adapt. We need to understand what is happening around us. Everything is becoming instant. Now, for example, today I've got an inquiry that we'll send you one episode which is of 1 hour. Can you deliver that episode dubbed, mixed 5.1 in the next 2 days? And the quantum is huge. Humanly, in the way that we work right now, it's impossible. So why is this new technology coming in? Because there is a need for instant work. ये सारी चीजें हमें enable करेगी कि हम इस तरीके का काम कर सकें. अब इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे आर्टिस्टों का, हमारे इंजीनियर्स का, हमारे बाकी जो टैलेंट है, वो इसमें किस तरीके से जुड़ सकते हैं और उनका नुकसान ना हो. That is the idea that we should look for, but definitely adapt it, because it's going to enable us to do something magical. This is amazing. Yeah. Yes, please, Gautam. Yeah, sorry. I think Gurdeep also wanted to say something. I'll just take 10 seconds. I just remembered one, proverb which says, "Fear when it is yet to come. When in front, hit it hard." तो जब तक ये नहीं आता सामने, अपने skills को जो है sharpen करते रहिए, reinvent, और जब सामने आएगा, we'll all collectively take it head on. Like how Sumit said, हमारी टीम जो है ऑफिस में हो या पूरी इंडस्ट्री हो, साउंड इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आई एम श्योर मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे. बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा है डर बिल्कुल भी. बिल्कुल मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है. दर्पण कहेगा होल्ड योर हॉर्सेस, मैं कहूंगी सिखड़ी हूं मैं बठिंडा की. No, I completely agree with you. Yeah, so वही डरने की कोई बात नहीं है. I think I see it as an opportunity. With AI, जैसे एक वॉइस आर्टिस्ट एक टाइम पे एक ही स्टूडियो में एक ही चीज कर सकता है. But with AI, that same artist can be in 100 studios together and do make and probably being paid for those 100 jobs at the same time. Maybe I think लड़ाई इसी बात की है या डर इसी बात का है, whether the artist will be paid in parts for all those 100 jobs. तो आई थिंक जो कंसर्न है, आई एम श्योर यू एग्री विद मी सुमित, कि वही है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, लाइसेंसिंग आए, सो दैट अगर मेरी आवाज आप 100 काम के लिए भी ले रहे हैं तो मुझे उसका मुआवजा मिले. सो वी होप दैट हैपेंस, एंड उसमें सबका रोल होगा. मतलब इसको एथिकली करना वो सबसे बड़ा चैलेंज वही होगा. सो आई गेस वी विल हैव टू वेट एंड सी, बट लाइक गुरदीप सेड वेरी राइटली सो कि यू नीड टू brace for impact and
reinvent and be ready for it. So that's amazing. It's heartening to hear very optimistic feedback and views about the advent of artificial intelligence into our industry. You know, guys, एक मैं चाह रहा था कि इस सेशन के आखिर में एक सवाल जो कॉमन तीनों के लिए होगा, जो मुझे लगता है बहुत लोग ये जानना चाहते हैं ना. अब आप तीनों, all three of you are audio content producers. का मतलब ये है that you work with a lot of voiceover and dubbing artists, narrators. अगर मैं voices की बात करूं, and I'm sure all of you are inundated with a lot of fresh voices. तो हमेशा का एक ये रहता है कि जो नए लोग हैं या जो budding voice artists हैं, how do they get their foot in the door? और अगर आप में से आप तीनों अगर एक एक अपनी राय दें कि अगर कोई बंदा या बंदी इस कला में आना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए. Can we start with let's start with Sumit. Let's start with you. See, आज तो इतनी अपॉर्चुनिटी है और सीखने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी है. मतलब there are so many veterans, senior voice artists who are ready to teach you. So सीख कर आएंगे तो definitely there is huge opportunity. मतलब we are looking for people. We want people. There is always a requirement कि we want new voices from the channels, from the clients. You know, so opportunity is definitely there. But most of the time नए voices को नहीं लेने का कारण मैं कहना चाहूँगा, लेना तो सब चाहते हैं कि वो तैयार नहीं होते कि उस टाइम पे उस चीज के लिए. जो अगर मुझे एक एपिसोड एक आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट मुझे 2 घंटे में करके दे सकता है, सो शुड आई वेस्ट माय टाइम विद अ न्यू कमर फॉर द नेक्स्ट 4 hours इन माय स्टूडियो, एंड डज माय क्लाइंट रियली गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक दैट गैप जब कम हो जाएगा, जब वो सीख के अपने आप को तैयार करके आएंगे, तो डेफिनेटली देयर इज नो लुकिंग बैक. ये बहुत बड़ी बात बोली है सुमित ने, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, कि वो आप कितने कम वक्त में अच्छा काम कर पाते हैं. ये जितने कम वक्त में आप अच्छा काम कर पाएंगे उतना ही ज्यादा कोई भी क्लाइंट आपको आपके साथ एंगेज करना चाहेगा. सो विच इज आई थिंक बहुत कम में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है. ग्रेट. गुरदीप, आप क्या बोलेंगी कि आपके पास जो नए आर्टिस्ट आते हैं, व्हाट डज इट टेक फॉर यू टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, गिव देम अ चांस? See, we also have a studio ID where we get a lot of voice samples every day. See, first thing I would say, as a new voice artist, you need to weigh your strength and weaknesses. A lot of voice artists who we come across, if they're not proficient with the language, voice modulation अगर आपका ठीक नहीं है, like how Sumit said, you need to get yourself trained. Whether आप किसी voice coach के पास जाइए या YouTube पर videos देखिए, you know, hone the craft. Money will definitely flow. Like how Sumit said, today, if somebody tells me, Gurdeep, you charge say 10,000 to do 2 lines, it just takes 10 minutes. And I tell them, ये 10 मिनट के पैसे नहीं हैं, ये 10 साल के हैं जो मुझे लगे यहाँ तक पहुँचने में या एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनने में. सो ये मेरे एक्सपीरियंस के पैसे हैं. सो अ लॉट ऑफ वॉइस आर्टिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और एक मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे स्टूडियो आईडी पर सैम्पल्स आते हैं, जो शोरील है आपकी, विच इज़ बेसिकली योर वॉइस डेमो, चाहे आपने काम किया है या नहीं किया है, वो शोरील जो है वो आपकी बेस्ट वॉइस फॉरवर्ड नहीं दर्शाती, या हमें नहीं पता चलता आपके वॉइस के स्किल्स. So as a budding voice artist या new voice artist, please get yourself to a studio under supervision of maybe a creative supervisor. Get a very good showreel which highlights the best in your voice. So ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर करेंगे तो आपके chances बढ़ेंगे. At the same time, you know, please be assured, अगर आप कुछ भी फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप 10 पेजेस फ्लिप करते हैं, राइट? प्राइस भी सही होनी चाहिए, डिस्काउंट भी होना चाहिए, अच्छी भी चीज होनी चाहिए. सेम विद द क्लाइंट्स. सो टेक द रिजेक्शंस इन योर स्ट्राइड. Sometimes it's also not about कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है. It is also to do with that maybe the fit is not right. आपकी voice शायद उस character को suit नहीं कर रही है. So rejections are going to be part of it. Hustle करना पड़ेगा, cold calls करनी पड़ेंगी, चाहे groups join करने पड़ेंगे, आपको auditions के लिए जाना पड़ेगा, and you will have to wait. Every voiceover artist has been through that journey. I'm sure some of us might have been very lucky, but a lot of us have gone through that phase जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी. Character voices या जिसे हम crowd dubs कहते हैं, junior artist से शुरुआत करके आज narrator हैं या एक prize command कर रहे हैं. So आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, अपने craft को hone करना पड़ेगा, अपने skill को बहुत बहुत अच्छे से develop करना पड़ेगा.
Absolutely. Very well said. I think that point about making a good showreel या work samples क्योंकि uh, they are the showcase of your voice. तो आपको उस पर काम करना चाहिए. ये नहीं कि घर पे कुछ रिकॉर्ड कर लिया. अगर आप एक प्रोफेशनल के तौर पर परसीव करे जाना चाहते हैं, then you have to invest in creating a wonderful demo of your best work. I agree with you completely, Gurdeep. Gautam, आप क्या कहना चाहेंगे as a dubbing localization company? I'm sure you have a lot of people coming to you कि हमें chance दे दीजिए. What does it take for someone to make the cut at Aural Arts? Right, right. I mean, I think Gurdeep and Sumit already have covered most of it. मतलब सारी चीजें जो उन्होंने बोली वो सारी चीजें तो डेफिनेटली करनी ही है अगर if you want to make a mark in this industry. एक आध चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा. One is जब आप अपनी शोरील भेजते हैं, जब आप अपना कोई काम भेजते हैं, क्योंकि हमारा भी एक स्टूडियो आइडिया है जहाँ पे काफी सैंपल्स आते रहते हैं, तो उसमें काफी लोग ऐसा करते हैं दैट दे डोंट राइट डिटेल्स ऑफ विच कैरेक्टर दे हैव डन. वो एक वीडियो डाल के छोड़ देंगे जिसमें शायद 4 कैरेक्टर्स 4 वॉइसेस आ रही हैं. Correct. तो उसमें इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें ये पर्सन ने क्या काम किया है. तो वो एक चीज है. आई थिंक पीपल नीड टू व्हेन दे आर मेलिंग समथिंग दे नीड टू गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट दे हैव डन, एंड वो सारी एक डिटेल्स हैं. प्लस दूसरी चीज, जब आप सीख रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न फ्रॉम ऑल दीज ग्रेट आर्टिस्ट, जहाँ पे भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, so that is obviously that's a crash course in this industry to get you introduced to this industry, but that does not give you the pass or rather the certificate where you can directly go in and आप lead characters कर लें या even कोई proper characters कर पाएं. So your practice, your homework needs to be very strong. So उस चीज में अगर आप घर पे उस चीज को प्रैक्टिस करें with taking some scenes from some movie, writing your own lines, dubbing it on the go, that will enhance that thing. And जैसे सुमीत ने बोला कि हाँ, अगर कोई मेरा आर्टिस्ट है जो 2 घंटे में कर सकता है, तो I might not give you that time of 4 hours to actually complete that character. So वो एक बहुत important चीज है, speed that you need to maintain अगर आपको उस लाइन में आना है. और साथ ही साथ आपको जो है वो अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एक्चुअल डबिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो देयर आर सम पीपल, सम किड्स दीज डेज जो कि उनको आते ही एकदम चाहिए कि हमें ये नहीं, ये अमाउंट बहुत कम है, आप क्राउड करवा रहे हैं, छोटे कैरेक्टर्स करा रहे हैं, अमाउंट बहुत कम दे रहे हैं आप. So I think and I take this as a platform कि अगर if these people are watching this, so please do not see money at the start of your career. Please don't. Think of it as an experience कि आपको एक मौका मिल रहा है एक स्टूडियो में एक्चुअल एक मेन स्ट्रीम में कहीं पे काम करने का, और उसको एज आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए एंड आगे बढ़िए, rather than thinking कि नहीं मेरे को ठीक से पैसा नहीं मिला या उतना पैसा नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. Yeah, I think that's about it. Absolutely, absolutely. One quick thing here, Gautam, which I have also faced with a lot of new artists is give the client what he or she wants. If you are going to send a sample which is inappropriate to the client's requirement, then obviously your sample is not going to get selected. So आप अगर क्लाइंट का ब्रीफ ले रहे हैं किस तरह का कैरेक्टर है या वॉइस ओवर में क्या रिक्वायरमेंट है, एंश्योर आपके पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैंपल है, अगर आप शोरील बना रहे हैं, एंश्योर इट कवर्स एवरीथिंग. आपकी आवाज में ड्रामा पता चलना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें पता चलनी चाहिए क्लाइंट को आपकी आवाज में. एंड समटाइम्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज योर फोन रिकॉर्डर. Never record on your WhatsApp. If you have to send a customized demo of 2-3 lines, use your phone recorder. आपके घर में अगर लकड़ी की अलमारी है, wooden cupboard है, which is a good source of sound absorption, put yourself inside the cupboard, record 2-3 custom lines and send it to them. Give them that feel that you are able to, or you will be able to match up to what they are looking at, even if it is not reflecting in your samples. So that is one trick that has always worked for us. I have always asked the client that give me some time. In fact, Darpan को भी मैं बहुत बार परेशान कर चुकी हूँ. Darpan, of course, everybody knows Darpan and his voice skills. But कभी-कभार client का कुछ अगर अलग requirement होता है, he's always obliged by sending me 2-3 lines of custom demo, and it works like हुक्म का इक्का for us always.
I completely agree with you. So basically, आप तीनों ने बहुत कमाल कमाल की बातें बताई. When it comes to newcomers wanting to enter the industry or wanting to make a mark in the industry, I think Sumit started with putting out a very, very important point. As a producer, his time has a lot of value, and he would not want to invest more time than what someone else is using already. So if you are a new talent, you will not get a discount just because you're a new talent. You will still need to compete with someone who is a regular artist. तो वो अगर कोई काम 1 घंटे में कर रहा है, शायद आपको 1.25 घंटा मिल जाए और 2 प्यार की बातें मिल जाएं, बट आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे. तो अगर आपको 3 घंटे लग रहे हैं, that means you need to go back to the drawing board and still work on yourself. Gurdeep also mentioned about making a good show reel, making good samples, very important. गौतम ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूं कि जब आप ईमेल्स भेजते हैं, सेंड आउट वेल रिटन ईमेल्स. कई बार ऐसा होता है जो ईमेल आईडी है वो अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, अपना नाम लिखिए. ईमेल आईडी में आपका नाम होना चाहिए. आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स _ insect.mumbai तो why will I even bother to open that mail? और अब सब्जेक्ट लाइन ठीक से लिखिए. और जैसा गौतम ने कहा कि अगर आपने कोई सैंपल भेजा है तो मेंशन कीजिए कि आप क्या करते हैं, कौन सी भाषा में काम करते हैं, उस सैंपल में आपकी आवाज कौन सी है. कोई भी 5-6 मिनट का ये मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करेंगे तीनों की, हम 20-25 सेकंड से ज्यादा किसी की आवाज हमें सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अगर आप हमें 10 मिनट का एक डेमो रील भेजेंगे कि 9वें मिनट में आपने अच्छा काम किया है, हम उस 9वें मिनट में जिंदगी में कभी नहीं पहुंचेंगे. सो बी सेंड आउट वेरी वेरी स्मॉल वर्क सैंपल्स. और आई थिंक इसके अलावा यू हैव टू हसल. और एक सबसे अच्छी बात जो कही कि आप कहीं पर भी ट्रेनिंग लेते हैं, गौतम ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ट्रेनिंग, चाहे वो ट्रेनिंग जो है वो 1 दिन की वर्कशॉप हो या 3 महीने का कोर्स हो या 1 साल का प्रोग्राम हो, that training, I always say, is only the beginning of your learning of the craft. And that training basically just opens up the doors to what this craft is all about. It helps you understand your own aptitude, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके बाद आपका असली सफर शुरू होता है. तो ये आई थिंक हम चारों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये काम सीखना चाहते हैं, simply by writing on a DM कि how do I enter the industry या मुझे काम कैसे मिलेगा. आई थिंक ये करके हम इस कला को, इस प्रोफेशन को अंडरमाइन कर रहे हैं. सुमित यहाँ पर है, 30 साल से ऊपर से इस क्राफ्ट का हिस्सा है. मैं 25 साल के ऊपर मुझे हो गए. गौतम भी मेरे ख्याल से 20 साल के ऊपर से इस इंडस्ट्री. तो ये एक बाकायदा प्रोफेशन है. जैसे लोग कोई डॉक्टर होता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कोई वॉइस आर्टिस्ट होता है. तो मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर बनने के लिए भी आपको 5 साल का MBBS करना पड़ता है. उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे. तो हमें क्यों लगता है कि हम 1 दिन के 2 दिन के कोर्स में या कुछ महीनों के वर्कशॉप में या कोर्स में हम एकदम धुरंधर बन के निकलेंगे. सो ये गलती अगर नहीं करें, एंड इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म एटीट्यूड, आई एम श्योर दैट anyone will be, if you get an opportunity tomorrow to record with a Gurdeep, and if you do a good job, she'll be happy to recommend you to 4 people. But if you don't know the job, even if you go to 10 producers, it's not going to yield anything. So I hope I've seen a lot of artists, like how Darpan said, I've seen a lot of artists who like to give some suggestions कि कैसे बेहतर की जा सकती है output, and it's always nice. You come across as an intelligent voiceover artist. I mean, coming to studios on time, like how you said, invoices भेजना time पर, professionally behave करना, वो आपके जो repeat clients हैं वो बढ़ाएगा. Plus today it's an open market. If you see COVID के बाद से voiceover artists can work directly with clients. The clients can ask them कि आप ठीक है सीधा studio book कर लीजिए. Sometimes you don't even have to go via studios. You are your own entrepreneur for that matter. It's an open market. काफी सारे artists. It's an open market, yeah. Absolutely. और हम सब जो आर्टिस्ट हैं आज सबके घरों में होम सेटअप्स हैं. कोविड में स्टूडियोज ओपन नहीं थे, सब अपने घरों से काम कर रहे थे. आपको ऑडेसिटी सीखना पड़ा, आपको जो भी कोई और सॉफ्टवेयर्स हैं सीखने पड़े. सो ये नीड ऑफ द आवर है. आप AI तो बहुत दूर की बात है, पहले जो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, व्हाई डू यू रेजिस्ट?
कुछ नया सीखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है. So why don't you adapt? ये जो already existing चीजें हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, एब्सोल्युटली, नए माइक कौन से हैं, कौन से हेडफोन अच्छे हैं, डिस्कस कीजिए, बात कीजिए उन बिल्कुल सब के बारे में. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी वेल पुट गुरदीप। और आई थिंक ये बड़े कमाल का, बड़ा ही इंसाइटफुल इंटरेक्शन रहा। हमने बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, आज भले ही कुछ लोगों ने इस इंटरेक्शन को देखा होगा, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दिस विल रिमेन ऑनलाइन फॉर एवर। और आने वाले टाइम में आई एम होपिंग दैट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री विल गेट टू वॉच दिस इंटरेक्शन एंड अ लॉट ऑफ एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स will get to learn a thing or two about their journey into the craft. Gurdeep, Gautam and Sumit, thank you so much. You guys have been so generous. और पहले दिन भी हम मिले थे और अब अगली बार हम मिलेंगे 17 तारीख को। तो जो लोग देख रहे हैं, आप लोग शायद जानते हैं कि 10 दिनों का ये सफर है। आज छठा दिन है और बहुत ही exhausting और exhaustive India Voice Fest रहा है इस बार. We having more than 20 sessions, more than almost 50 speakers from not just India, but we had a couple of them from some international speakers as well. 17 तारीख को we have the grand finale at Rangshada Auditorium, which is in Bandra in Mumbai. तो अगर आप भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पर सैकड़ों वॉइस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स मिलेंगे एक साथ, and we also have a glittering award ceremony. तो प्लीज एक डेलीगेट पास है हमारा, हमारी वेबसाइट पर indiavoicefest.com पर आप आ सकते हैं. गेट योर पास टुडे. एंड गुरदीप, सुमीत एंड गौतम, आई एम डेफिनेटली सीइंग you on the 17th. Thank you once again and you guys have a great evening. Thank you, Gautam, Sumit, thank you, Darpan, thank you. everybody. I'm sorry for that 1 minute of that time which I took extra. Oh, Thank you. not at all. Bye-bye. Thank you. So that was the audio producers roundtable. I hope you enjoyed this session. और आज की शाम का अगला सेशन, today we have 2 sessions lined up. एक हो गया audio producers roundtable और जो अगला सेशन है, which is the Urdu language workshop, जिसमें हमारे साथ हैं आमिर अजहर खान, जो उर्दू लैंग्वेज एक्सपोनेंट है। और जैसा मैंने कहा, पहली बार इंडिया वॉइस फेस्ट के मंच पर उर्दू भाषा को लेकर कोई सेशन हो रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आता हूं और हमारे साथ जुड़ेंगे आमिर अजहर खान। तो कहीं मत जाइएगा। यू वॉचिंग इंडिया वॉइस फेस्ट 2023. दिस इज डे 6. आई एम दर्पण एंड वी विल बी बैक इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स. हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस फेस्ट 2023. मैं हूं दर्पण और आज की शाम बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, क्योंकि सबसे पहले हमने शुरुआत की इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 के 6th डे के पहले सेशन की, जो है ऑडियो प्रोड्यूसर्स राउंड टेबल. और उसके बाद अगला सेशन जो है हमारा, वो है द उर्दू लैंग्वेज वर्कशॉप. बिफोर वी मूव अहेड, आई जस्ट नीड टू, आई एम नॉट वेरी श्योर, एम आई ऑडिबल? Can someone who is watching write if I'm audible? For a moment, I thought that my mic has switched off. तो अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई एक लिख दे. Okay, lovely. Thank you, Karen. That's Karen Rebecca D'Souza, a lovely voice artist.
Thank you, Karen. That's Melissa Mendonça, Himang Agarwal. Okay, that's enough. Yes, thank you. I know I can be heard now. India Voice Fest 2023, conceived and curated by yours truly, Darpan, produced and organized by Sugar Mediaz. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsor Audio Magic, industry partners MnM Talkies, G-Corp Media, Gulmohar Media, and Aural Arts. Proud supporters Neshma Academy of Acting and Voice Acting, Surabhi Javeri Vyas, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders Private Limited. ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपका तारुफ कराता हूं, इंट्रोडक्शन कराता हूं हमारे आज के उर्दू लैंग्वेज वर्कशॉप के हमारे स्पीकर का। ये हैं साहब आमिर अजहर खान। आमिर इज अ लैंग्वेज एंथुजियास्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, इसीलिए हमने हर जगह यही लिखा है कि आमिर अजहर खान उर्दू लैंग्वेज एक्सपोनेंट। हिज पैशन इज उर्दू, और जैसा कि आप जानते हैं उर्दू तो बेहद एक बहुत ही खूबसूरत जबान है। उर्दू पढ़ना हो, लिखना हो, नरेट करना हो या पोइट्री पढ़नी हो, इट इज द क्रक्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस. I love that. You know, when someone says that about himself, it tells you what that thing means to that person. So, आमिर के लिए उर्दू लिटरली उनकी एग्जिस्टेंस का कारण है, जिसको फ्रेंच में कहते हैं raison d'être, is the reason to live. He is also known as Urdu Dan on social media. Urdu Dan, वैसे दान, उर्दू दान अच्छा शब्द है, अच्छा नाम है, क्योंकि यहाँ भी he has been so generous. यहाँ भी वो उर्दू दान करने ही आए हैं हमें उर्दू को लेकर, हमारे साथ उर्दू को लेकर बहुत सारी बातें शेयर करने आए हैं. Urdu Dan is a podcast which is full of Urdu poetry pieces, ghazals and nazms, and the podcast has 10,000 active listeners across various platforms. अगर आप उर्दू दान को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं बताऊं, उर्दू दान बहुत ही कमाल का इनका इंस्टा हैंडल भी है, जिसमें तकरीबन 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं. तो अभी जाइए और urdu.dan को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए. That's urdu.dan. And from that fountain emanates Amir's many sprinkles, some of them being voiceovers, scripting, Urdu teaching, content creation, creative consultation, etc. As a voice artist, he's worked with organizations like Mirchi, Rekhta, and others. वैसे अभी आप सुनेंगे कुछ ही क्षणों में आमिर को बेहद ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं. Let's have him on the screen, Amir Azhar Khan. हेलो दर्पण, कैसे हैं आप? Can you hear me? आमिर कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही साफ सुनाई दे रही है. Thank you so much. I'm sorry I don't have a background as good as yours. Yes, पहले जो लोग बैठे हुए थे, wonderful backgrounds. मेरा तो पीछे एक तकिया रखा हुआ है. नहीं, ये भी जो बैकग्राउंड है, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त की देन है, ये उनका दान है. उनका नाम है जॉन, वो एक सिनेमाटोग्राफर हैं और उन्होंने हमारे स्टूडियो को एक बाकायदा ब्रॉडकास्ट सेटअप में कन्वर्ट कर दिया है फॉर इंडिया वॉइस फेस्ट. तो बहुत प्यारा बैकग्राउंड है, थैंक यू सो मच. और आपका भी बहुत ही हसीन बैकग्राउंड है, क्योंकि माइक्रोफोन है उसमें और आप हैं. सो आमिर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आप इस वक्त भोपाल में हैं? जी, मैं भोपाल में हूँ जी. तो आमिर भोपाल के हैं. एंड द बेस्ट न्यूज इज कि आमिर खान जो हैं 17 तारीख को बंबई में होंगे फॉर द ग्रैंड फिनाले एट रंग शारदा. तो हम शुरुआत करें इसके पहले कि मैं ये मंच आपको सौंपूं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आमिर, क्योंकि आप इतनी अच्छी शायरी शेर वगैरह पढ़ते हैं, रेख्ता वगैरह, रेख्ता में भी पढ़ा है ना, मेरे रेख्ता में भी पढ़ते हैं. अभी आप रेख्ता में ही थे, राइट? रेख्ता के प्रोग्राम में गया हुआ था. जी, वहाँ पे थोड़ा सा जी, दिल्ली में. तो मैं चाहूंगा कि 17 तारीख को जब पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा होगी, तब क्यों ना स्टेज पर आप कुछ पढ़ें. मैं जरूर कोशिश करूंगा. आपका हुक्म सर आंखों पर. क्या बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो मुंबई की इंडस्ट्री है, दे नीड टू नो यू. और आप इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, इतनी प्यारी जबान के मालिक हैं. तो हमारे लिए हमें बड़ा फक्र होगा अगर आप इंडिया वॉइस फेस्ट के मंच पर आकर कुछ शेर पढ़ें. तो ये आपसे वादा मैं ले रहा हूं ऑलरेडी. जी बिल्कुल, उसमें नजर है. और क्या बात है. और देखिए, यही मैं कह रहा था कि जबान, एक तो उर्दू जबान इतनी खूबसूरत है, और जब बोलने वाला उसकी अदायगी इतनी प्यारी हो, तो इट साउंड्स लाइक म्यूजिक टू योर ईयर्स. Thank you so much. Thank you so much. So, आमिर, हमने बात की थी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. और मैं कहाँ से आपको, मतलब
ढूंढ के लाया हूं कि एक नगीने को ढूंढ के लाया हूं इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए। तो आज का क्या प्लान है आपका, क्योंकि मैं कुछ ही क्षणों में ये मंच आपको सौंपने वाला हूं। तो व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू शेयर मेरा विद प्लान अस? दर्पण यही है कि मैं उर्दू के बारे में थोड़ी सी बात करूं, ये बताऊं कि उर्दू जो है वो वॉइस ओवर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और आई थिंक उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उसका कॉर्नर पीस है या उसका जो पाया है वो ये है कि प्रोनाउंसिएशन जो गलतियां होती हैं, प्रोनाउंसिएशन की जैसी हमारी और आपकी बात हुई भी थी कि उन प्रोनाउंसिएशन की गलतियों में ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही बोल रहे हैं। अभी मैं रेख्ता में था तो किसी ने कहा था कि आप एक हिंदी, विकास दिव्य कीर्ति जी थे, उन्होंने कहा था कि आप एक भी हिंदी का जो जुमला है या हिंदी का जो वाक्य है वो उर्दू के किसी वर्ड के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। और बिल्कुल उर्दू का भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हिंदी के बिना आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डूइंग एक्टिवली एंड गोइंग आउट ऑफ योर वे टू डू इट। आप कोई भी जनरल जुमला बोल रहे हैं, जनरल वॉइस ओवर कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि एक आध उर्दू का वर्ड आ जाएगा और जहां आप गलती कर सकते हैं तो उस गलती से बचने के लिए मेरे ख्याल में ये वॉइस ओवर का जो आपने मेरा ये वर्कशॉप रखा है, मैं उसी को बहुत एंगेज बढ़िया। करूंगा, उसी को एड्रेस करूंगा और आपसे किए हुए वादे को पूरा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात की थी कि ब्रॉडकास्टिंग में हम जैसा कहते हैं हिंदुस्तानी का इस्तेमाल होता है, जिसमें हिंदी और उर्दू का मिश्रण होता है, बल्कि और कई भाषाएं हैं जिन जहां से शब्द आते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां यही होती हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप किस शब्द का उच्चारण गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अनायास ही कर देते हैं, अननोइंगली कर देते हैं। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो वर्कशॉप होगा इट विल एड्रेस एवरीडे लैंग्वेज इश्यूज व्हेन इट कम्स टू उर्दू। और बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको उर्दू जबान पूरी तरह से आपको यू नीड टू नो द एंटायर द लैंग्वेज या लिपि आए आपको। इट्स मोर अबाउट एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। किसी ने लिखा है कि आमिर सर आपका इस्तकबाल है। देखिए ये थैंक यू, ऑलरेडी जो है आपको इम्प्रेस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। थैंक यू सो किसी ने मच। लिखा है कि ऑलरेडी आपको उर्दू दान को फॉलो कर दिया है। और बहुत बढ़िया। तो आमिर, अब मैं जो है आई विल टेक अ बैक सीट और मैं स्टूडियो में हूँ, ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में बैक एंड ठीक पे। है, एंड ठीक है। आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्लीटली बी इमर्स्ड इन योर सेशन। सो ओवर टू यू, आई विल सी यू एट द एंड। तब हम कुछ और बातें करेंगे एंड आई विल सी यू लेटर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्पण। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं सिर्फ यहाँ अपने आप को ही देख सकता हूँ, तो मैं इसलिए ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ही बात करूं। तो जब हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं कि मैंने सवाल ये उठाया था कि वाई इज उर्दू इम्पोर्टेंट टू वॉइस ओवर्स। तो हम ये देखते हैं कि वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अर्ज की कि उर्दू बहुत ज़्यादा एज अ लैंग्वेज इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आर डेली कॉन्वर्सेशंस। चाहे आप बाकायदा उर्दू बोलते हैं, चाहे आप हिंदी ही बोलते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन एक आध लफ्ज़, किताब जैसा लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी में होगा ही होगा जो कि एक उर्दू का लफ्ज़ है, या कुर्सी जैसा लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी में होगा जो कि उर्दू का लफ्ज़ है। या हो सकता है आपका गला खराब है तो आप बोलें यार मुझे गरारे करने हैं या गरगरे करने हैं, और आप बोलें कि गरगरे करने हैं, वहाँ गलती हो सकती है। तो ये तलफ़्फ़ुज़ पे अगर बात की जाए या लैंग्वेज की एक प्रोफिशिएंसी की बात की जाए, तो इसके लिए इस ज़बान का थोड़ा बहुत सीखना मुझे लगता है हमारे वॉइस ओवर, जैसे हमारा पहले सेशन हो रहा था और मैं वो सेशन बैठ के सुन रहा था, एंड वाज एन अमेजिंग सेशन। जो तीनों लोग, चारों लोग बैठे हुए थे वो यही बात कर रहे थे कि सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एट एनी पॉइंट ये नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया, अडैप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक मुझे किस्सा याद आता है लता मंगेशकर जी का और दिलीप कुमार जी का। तो लता मंगेशकर जी का ऐसा था कि जब वो नई-नई आई थीं, तो उन्होंने गाना शुरू किया इंडस्ट्री में, और दिलीप कुमार जी ने उनसे आके कहा कि आप तो मराठी बैकग्राउंड की हैं, आप उर्दू कैसे गाएँगी? तो उन्होंने वो बात बड़े दिल पे ली अपने, और उन्होंने फिर उस चीज़ को एक तरह से अडैप्ट करते हुए, उस बात से सीखते हुए, उन्होंने एक उर्दू के उस्ताद रखे जिससे उन्होंने अपनी आइन, गईन या शीन, क़ाफ़ जो कहते हैं उर्दू में सही करने होते हैं, वो सही किए, और उसके बाद लता मंगेशकर वो बनी जो वो बन गई। एंड एवरीबॉडी नोज़ हाउ बिग ऑफ अ लेजेंड शी वाज़। तो ऐसे किसी की कहने की वजह से कभी-कभार इंसान इतना प्रोत्साहित हो जाता है, इतना उसको तहरीक मिल जाती है कि वो अपनी चीज़ों को सुधारना चाहता है और उससे कुछ बेहतर काम करना चाहता है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ प्रोनंसिएशन की, उर्दू में जो क्या इश्यूज़ आते हैं, तो मैंने देखा है कि कुछ लेटर्स हैं जिनमें
इश्यूज आते हैं। आई बी वेरी मैं थोड़ा सा सेशन को एजुकेशनल टच देने के लिए, जो फा उच्चारण है, फा, उसको अक्सर फा कर दिया जाता है या उल्टा कर दिया जाता है। ये जो बा उच्चारण है उसको वा कर दिया जाता है या उल्टा कर दिया जाता है, वा को बा कर दिया जाता है। जा को जा देखते हैं हम, जा को जा देखते हैं हम। शाह जो हिंदी में, उर्दू में शीन होता है या हिंदी में शाह होता है, उसको शाह सा, ये अक्सर ऐसा होता है कि नाम है सना, आप कह रहे हैं शना, या आपको कहना है शायद, आप कह रहे हैं शायद, ये एक इशू होता है। और गईन और काफ एक थोड़े से टिपिकल उर्दू के प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो जैसे लफ्ज़ है, मान लीजिए वही मैंने आपसे कहा, जैसे गुब्बारा लफ्ज़ है, गुब्बारे को आप गुब्बारा कहेंगे। या काफ से लफ्ज़ है कि कानून, तो कानून कहा जाता है जनरली, लेकिन इसमें चलिए फिर भी एक रियायत दे दी जाती है कि चलिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, तो काफ और गईन जो है, ये का और गा का जो साउंड है उसको आप सीखना तो सब चाहिए, तो ये भी आप सीखें, लेकिन उससे पहले के जो खास मैंने आपको बताया, फा और फा, बा और वा, जा और जा और शा और सा, इसकी जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और मुझे लगता है ये सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक तो आप ऑब्वियसली एक नियत करें, एक इरादा करें कि मैं सही बोलूँगा, ये बोलना बहुत ज़रूरी, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग, मैंने देखा, ये चाहते हैं कि बस कर लें, किसी तरीके से निपटा दें, जिसको कहते हैं ना कि हाँ, थोड़ा बहुत ही सीख लें, उसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मुझे लगता है ज़्यादा सही, सबसे पहले तो जो सुधारा जाए वो एटीट्यूड सुधारा जाए, कि हमारा एटीट्यूड ये है कि शाह की जगह हम जहाँ शाह बोलना है वहाँ शाह बोलेंगे, जहाँ सा बोलना है वहाँ सा बोलेंगे। इसमें अगर आपको थोड़ी-सी मदद चाहिए, तो उर्दू शायरी काफ़ी मदद करती है। उर्दू शायरी में जैसे आप पढ़ते हैं गालिब को फॉर एग्ज़ाम्पल, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये ख़ा भी मैंने मिस कर दिया था, आखिर कर देते हैं लोग। तो आखिर इस दर्द की दवा क्या है? अगर आप शायरी में इंटरेस्ट लें, उर्दू तो वैसे काफ़ी वसी ज़बान है, काफ़ी कुछ है उसमें, लेकिन अक्सर उर्दू शायरी के लिए जानी जाती है। तो शायरी में अगर आप पढ़ें, या शायरी अगर आप पढ़ें, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो आप अगर पढ़ते-पढ़ते उसको सही करने की कोशिश करें, उसमें लहजे ऐसे अलग, किसी ने कहा था कि अगर आपको डायलॉग डिलीवरी सही करनी है, तो आप उर्दू शायरी सीख लें। तो उर्दू शायरी में ऐसी, जैसे एक मैं अभी लास्ट जो सेशन यहाँ पे हो रहा था, उसके हवाले से मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब इसमें आप देखिए लहजे का बड़ा कमाल है कि जिस तरह आपको बोलना है ये, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये लहजा अगर आप सीख लें, तो मुझे लगता है आपके वॉइस ओवर्स में एक एक नए रंग खुल के आएँगे, उसमें वो एक खिलखिलाहट सी आ जाएगी, वो उसमें एक रौनक आ जाएगी, वो खुशबू बन जाएगा। तो ये थोड़ा मेटाफोरिकल मैं कह रहा हूँ, खुशबू बन जाएगा, लेकिन वाक़ई ऐसा होगा कि आपके लहजे से जो है वो एक सुगंध आएगी। हम देखते हैं कि अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स हैं बॉलीवुड में, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ऐसे और भी सिंगर्स हैं। मुझे अरिजीत सिंह की खासियत या अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को लेके। आप अरिजीत, मैंने शायद ही कभी एक आध बार कभी देखा हो तो देखा हो, वरना अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं। और न सिर्फ गायकी के साथ-साथ उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। जो वजह है, मुझे लगता है कि उनकी जो कामयाबी है, उसकी जो वजह है वो ये है कि ही वांट्स टू एंड ही सेज थिंग्स करेक्टली। जो उर्दू के ख़ास तौर से अल्फ़ाज़ इसमें गानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वॉइस ओवर्स में तो चलिए हर तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लेकिन गानों में देखा जाए तो उर्दू का बेहद इस्तेमाल है। तो उस इस्तेमाल को सही तरीके से उसको दुरुस्त रखना, और ये मैंने इनके यहाँ देखा है, अरिजीत साहब के यहाँ। और भी सिंगर्स हैं पुराने, सोनू निगम को आप देखें, उससे पहले तो सिंगर्स ख़ैर इसकी पाबंदी करते ही थे। मैं सिंगर्स की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है सिंगर्स भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होते, लेकिन वॉइस आर्टिस्ट तो होते हैं। और अच्छा, इसके साथ-साथ अगर पर्टिकुलरली मैं वॉइस आर्टिस्ट की, मैंने अभी रिसेंटली एक वो किया था, एक वॉइस ओवर का एक काम किया था। उसमें एक गलती थी, जैसे अल्फ़ाज़, जो लफ्ज़ था वो था जज़्बात, और वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था जज़्बातों। तो मैंने उनसे कहा कि भई लफ्ज़ जो है सिंगुलर वो जज़्बा है। ये मैं यहाँ उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से बाहर निकल के उर्दू की बात कर रहा हूँ, और लफ्ज़ जो है वो जज़्बा है, और आपने यहाँ पे जज़्बातों लिखा है, तो जज़्बा का प्लूरल होता है जज़्बात। तो प्लूरल का प्लूरल जज़्बातों बना रहे हैं आप, प्लूरल का प्लूरल भी कोई चीज़ होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं।
और उन्हें देखा एक आध दिन, फिर उसके बाद उनका वापस जो उनकी टीम का जो क्वालिटी असेसमेंट आया वो ये कि नहीं, क्योंकि पॉपुलरली यही यूज होता है जज्बातों, इसलिए आप जज्बातों ही पढ़िए। अब मेरा इससे, मैं एक ना इत्तेफाकी थी मेरी इससे, आई वाज़न्ट एंटायरली अप फॉर इट, लेकिन मैंने कहा चलिए ठीक है, इफ दैट्स व्हाट द क्लाइंट वांट्स यू हैव टू डू इट। बट ये असेसमेंट उनका कि पब्लिक ये सुनना चाहती है, मुझे लगता है ये असेसमेंट कहीं भी सही नहीं होता। आपकी पब्लिक क्या सुनना चाहती है? सही असेसमेंट ये होता है कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप पब्लिक को कैसे एजुकेट करना चाहते हैं, आप पब्लिक को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक आइडियल होता है, एक हाई आइडियल को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से इट राइट रादर देन गो फॉर व्हाट्स एक्सपीडिएंट। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको लफ्ज़ है गलती, तो आपको गलती ही बोलना है, आपको गलती नहीं बोलना या गलती नहीं बोलना। और क्योंकि आपका जवाब इसमें क्या होगा या आपका एक्सक्यूज़ क्या होगा गलती बोलने का? आप बोलेंगे सब तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्यों गलती बोलूँ? है ना? लेकिन मैं समझता हूँ कि सही जो रीज़न होना चाहिए, वो रीज़निंग राइट और रॉन्ग की होनी चाहिए। कि जो थोड़ा-सा ठीक है, कभी-कभी आप देखते हो ऐसे लोगों को बड़ा डिस्कार्ड भी किया जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा मज़ाक भी उड़ाया जाता है, बड़े प्यूरिटैनिकल से हैं, बड़े प्यूरिस्ट से हैं, ये तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, बड़े खप्ती से हैं, बड़े झक्की से हैं, कि ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं, इन्हें गलती ही बोलना है, गलती नहीं बोलेंगे ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलती बोलना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सही है, और हमारी आज की जनरेशन और अगली जनरेशन को हम अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि हम क्या दे रहे हैं, तो हम उसको क्या अपनी एक गलती देना चाहते हैं या गलती देना चाहते हैं? मैं आई एम श्योर कि हम उसको गलती नहीं देना चाहते, क्योंकि वो गलतियाँ अगर वो भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, तो ज़ुबान तो खराब होती जाएगी। एक आज से 50-100 साल बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि लफ्ज़ क्या है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे आखिर का मैंने लफ्ज़ आया था, तो आखिर में लोग आखिर बोलते रहेंगे, उसको सही समझा जाएगा। और मैं खुद महसूस करता हूँ, अच्छा ये मेरी पर्सनल चॉइस है, कि जब मैं कोई गाना सुनता हूँ, मेरे लिए, मैंने दर्पण से भी बात की थी मैंने, और मैंने उनकी तारीफ़ की थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के हामी हैं, और वो सही तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सारे वॉइस ओवर्स में। ये एक हाई आइडियल है, जो जब भी जहाँ मैं देखता हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उसकी इज़्ज़त करता हूँ कि इंसान का जो है वो सही जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए, और उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अच्छा, ये आपकी एक ज़िम्मेदारी भी है, वो भी बात जो मैंने कही कि आप अगले जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं। इसके साथ-साथ अब ये किया कैसे जाए? तो किया कैसे जाए, इस पे मैंने बात की थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस में अगर आप जैसे कोई भी चीज़ उर्दू का ज़रूर, मैंने ये नहीं कहूँगा आपके सीधा आप फ़ॉरेन लैंग्वेज अलिफ बे ते से सीखना शुरू कर दें। आपको जो ज़बान आती है उसमें भी अच्छी खासी उर्दू है, ऑलरेडी मौजूद है। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन आप उनमें शायद गलती कर रहे होते हैं कि क्योंकि आपने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सीखें, और ऐसे कोर्सेज़ मेरे पास भी मौजूद हैं उर्दू दान पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाएँगे, सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाएँगे। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ सीखना चाहते हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ सही। अगर आप लैंग्वेज बाकायदा सीखना चाहते हैं, तो लैंग्वेज सही। अगर आप स्क्रिप्ट के साथ सीखना चाहते हैं कि नहीं मैं वैसे सीखूँ जैसे ज़बान लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, तो वो भी सही। तो ये एक बात है जो मैं इसमें रखना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी ख़ास-ख़ास बातें तो यही थी। अगर दर्पण आप वापस आ सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद यू। वो मुझे ज़्यादा कंफ़र्टेबल रहेगा कि मैं आपसे बात कर सकूँ यहाँ अकेले एक सिंगल फ्रेम में, मेरे लिए जहाँ मैं किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब अकेले मोनोलॉग पे बात करना ज़रा-सा वो हो रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी से अगर किसी को रूबरू रख सकूँ अपने, तो मुझे उसमें बात करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मोटे-मोटे तौर पे उर्दू लैंग्वेज वर्कशॉप में मेरा जो अंडरलाइन मैसेज जो मैं अंडरलाइन करूँगा, वो यही है कि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम करें, आप अपने वॉइस ओवर जो जितने आप करते हैं, उसे आप आइडेंटिफ़ाई करें उसमें कि आप उसमें उर्दू के पार्ट्स कौन-से हैं, और उसको जहाँ से भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो उर्दू दान से सीखें, चाहे आप वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म से सीखें, आप सीखने की कोशिश करें। जो बात इससे पिछले वाले सेशन में भी हो रही थी कि एआई आ गया है, तो अब क्या एआई को बैठ के हम परेशान होते रहेंगे कि अगर ये आ गया तो हम क्या करें आगे? नहीं भई, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आप उसके साथ अडैप्ट करते हैं, और जो अडैप्ट नहीं कर पाता वो रह जाता है। वही मैंने जो आपसे कहा ना कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।
तो जिस दिए में जान होती है वही दिया आगे तक जाता है, वरना बाकी दिए बुझ जाते हैं और वो शिकायत करते रह जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसने हमें मार दिया है, इसने हमें पीछे कर दिया। तो ये एक चीज होती है। दर्पण, इफ यू कुड जॉइन मी, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट कि अगर आप, इफ यू हैव द टाइम, इफ यू नॉट बिजी राइट नाउ, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। आई वुड लव टू स्पीक विद यू ओवर हियर। ये इसके साथ साथ अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हो इसमें, आई नो मैंने बहुत कम देर बात की, मेरी असल में मैं शायर हूँ, शायर होने की वजह से मेरी आदत यह है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। नहीं, पर आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू दर्पण जी। सॉरी आमिर, थोड़ा वक्त लग गया मुझे, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको सुना तो आई आस्क्ड माय engineer to just get me on. जी He's जी not around, so I quickly got that fixed. So आमिर, आपने बहुत बहुत कमाल की शुरुआत की, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने इस बात का जिक्र किया कि it is important to have the right attitude towards your language. राइट। क्योंकि मैं मानता हूं कि भाषा जो है ये बहुत फ्लूइड होती है, और हर शब्द एक दूसरे में मिलते हैं, भाषाएं एक दूसरे में मिलती हैं। कितने ही शब्द हैं हिंदी के, जो पर्शियन हैं, जो अरबी हैं, अरबिक हैं, उर्दू के कितने शब्द हैं, सबका ओरिजिन अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी भाषा अपने आप में पूरी तरह से प्योर है। एंड आई ऐसा थिंक होता ही नहीं। that is the beauty of language, that language is a confluence of so many influences. वेरी वेल And पुट, वेरी वेल पुट। मुझे मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी आमिर, और मैं चाहूंगा उस पर आप इलेबोरेट करें। जब आपने शुरुआत की और आपने कुछ गानों की बात की, कि कैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं, या जो प्रिडोमिनेटली आपकी कोई गजल सुनते हैं, मुझे मुझे गजल वर्ड से ना, मुझे आमिर एक बड़ा ही फनी किस्सा याद आया। जब गुलजार साहब और जगजीत सिंह साहब का कोई एक एल्बम रिलीज हुआ था, ये बड़े लंबे अरसे पहले की बात है, और मेरे ख्याल से मरासिम था या कोई और था, जी जी मुझे याद नहीं है। बट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि उस दौरान वो न्यूज में वो जो रिपोर्टर थी, शी सेड, आप बताइए इस गजल के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो गुलजार साहब ने कहा, जब तुम पहले गजल बोल लोगी तब मैं जवाब दूंगा। सही तो सही। तो मुझे ऐसा लगता है, जब हम उर्दू की बात करें, और अगर मैं बिल्कुल एलिटिस्ट नहीं बनूं, जैसा आपने कहा, प्योरिस्ट नहीं बनूं बिल्कुल भी, तब भी आई थिंक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का और रोजमर्रा में, वो है नुक्ते। सो मुझे ऐसा जी लगता है, अगर नुक्तों की बात करें उर्दू में, तो उसी में एक बाकायदा पूरा एक सेशन निकल जाएगा कि जी नुक्ते। तो आप हमें ना नुक्तों से आप हमारा परिचय कराइए, क्योंकि so that people in general have a more educated way of understanding the नुक्ता, और फिर कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, कुछ उसकी हिस्ट्री बताइए थोड़ा सा हमें, हमारी यहाँ थोड़ी सी दोस्ती कराइए नुक्तों से। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल भी जो आपने कहानी सुनाई बड़ी मजेदार थी कि वो गजल नहीं गजल होता है। और ये बात सही है कि वो प्योरिस्ट ना भी हो, जब भी गुलजार जैसा शख्स अगर बैठा होगा वहां पे, तो वो फिर यही कहेगा कि आप पहले गजल बोल के दिखाइए, उसके बाद मैं बाकी बातें करूंगा। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा वो इम्पोर्टेंट भी होता है कि सबसे पहले जब भी उसको कोई चीज खटकती है, वो सबसे पहले उसी की बात करता है। आप मुझसे कुछ भी कहेंगे, तो ये नुक्तों का भी यही इशू है कि जब आप बैठे हुए होते हैं, कोई आगे कहता है यार जरा चाय दे देना, तो आप चाय तो भूल जाते हैं, आप कहते हैं यार जरा को जरा कर लो पहले, उसके बाद चाय की बात होगी। तो ये मुझे सबसे पहले, जैसे आपने खुद ही कहा, ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सीखना चाहते हैं और आप सही चीज़ बोलना चाहते हैं, जभी आपको फ़र्क पड़ेगा भी, वरना आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जब अगर आपको फ़र्क पड़ता है, इफ यू आर ऑलरेडी देयर कि आपको फ़र्क पड़ता है, तो नुक्तों में वही मैंने जैसे 3-4 जो उच्चारण हैं, 3-4 जो तलफ़्फ़ुज़ हैं कि वो फा जो है वो फ़ा बन जाता है, और उसके लिए या बा जो है वो, बा और वा में तो ख़ैर नुक्ते का प्रॉब्लम नहीं है, जा और ज़ा में है कि जा में आप नुक्ता लगाते हैं। तो नुक्ते जो उर्दू में लगते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हम अगर इसकी हिंदी की लिपि की बात करें, देवनागरी की बात करें, तो अक्सर ऐसे बहुत सारे हरूफ हैं, ऐसे बहुत सारी लेटर्स हैं, अक्षर हैं,
जहाँ पे एक सिर्फ डॉट लगाने से जा जो है वो जा बन जाता है और फा जो है वो फा बन जाता है, तो ऐसी का जो है वो का बन जाता है। तो उस पे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मुझसे अभी मैं रेख्ता में था तो किसी ने पूछा कि हम अपना तलफ़्फ़ुज़ सही कैसे करें, अपना लहजा सही कैसे करें? तो मैंने कहा देखिए ज़बान जो है वो इंसान सुन के सीखता है। बच्चा बड़ा भी होता है तो वो लिख पढ़ के नहीं सीखता। वो अपने माँ-बाप को सुनता है, अगर उसके माँ-बाप की कोई गलती है, अगर उसके माँ-बाप जो है वो ज़रा को जरा बोलते हैं, तो वो भी बड़ा होगा और जरा बोलेगा। तो बिल्कुल। इसलिए ज़बान जो है वो उसको कहते हैं कि समाज से आती है, वो सुनने से आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे जो बड़े आर्टिस्ट गुज़रे हैं, जो इससे पहले आज के लोगों की मैं इतनी बात ना करूँ, अगर थोड़े से आज से हम 20-30 साल पहले चलें, तो हम अगर दिलीप कुमार जी की बात करें, हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें, हम नसीरुद्दीन शाह की बात करें, हम आज भी अगर देखें तो मनोज बाजपेयी की बात करें, ऐसे जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट्स हैं, जो दिग्गज आर्टिस्ट्स हैं, हम इरफान खान की बात करें, तो खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसे लोगों की जब आप मूवीज़ देखते हैं, मकबूल देखते हैं, आप देखते हैं कि मकबूल है, वो मकबूल नहीं है। और वो मूवी में भी जब तो बोलेंगे तो मकबूल बोलेंगे। बिल्कुल, और ये अगर अंग्रेजी में भी हम देखें, जब रोमन में भी लिखा जाता है तो MAQ हो जाता है वो। बिल्कुल। तो ये भी अगर आप बहुत ज्यादा भाषा की समझ नहीं भी है, पर अगर आप थोड़े चतुर हैं, वो चतुराई जी, भी काम आती है कि मकबूल है तो वो क्यू है, वो किस्मत हो जाता है, वो क नहीं है। वो क आघात नहीं। जो क का है इतना गहरा नहीं है, क्योंकि QISMAT या कातिल है वो, क्योंकि वो कातिल कातिल है। नहीं है, वो क इतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। तलफ़्फ़ुज़ है। दरपन जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जैसे मैं अगर इमेजिन करने की कोशिश करूँ या अज़्यूम करूँ कि आपने कातिल कैसे बोलना सीखा? ये मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने कैसे सीखा आपने? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं बहुत एक एवरेज इंसान हूँ, और ऐसा मेरे तो जो नहीं है। मेरा जो परिवेश रहा है, उसमें उर्दू का कोई दखल नहीं था कभी। हम एक हिंदी भाषी परिवार में पले बढ़े हैं। तो और उर्दू जो थी, उर्दू का मेरे लिए उर्दू वाज लिमिटेड टू गजल्स, लिसनिंग टू गजलें, या तो गजलें सुन ली, या फिर थोड़ा बहुत शेरो शायरी। और शेरो शायरी से मेरा मतलब ये इंटेलेक्चुअल वाले नहीं, ये जो लड़कपन वाली शेरो शायरी होती है वो है। बट आई विल गिव क्रेडिट टू वन थिंग, क्योंकि ये जो मेरा व्यवसाय है, ये मेरा पेशा है, और मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि इसका जो एक आधार स्तंभ है वो भाषा है। बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल। लिए दिस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर एंड दिस इज द ओनली टूल दैट आई हैव, सो आई ऑटोमेटिकली बिकेम वेरी वेरी माइंडफुल। तो राइट, तो राइट। मेरे मेरे मन में ये घर कर गया कि जितना ज्यादा मैं भाषा पर ध्यान दूंगा, जबान पर ध्यान दूंगा, उतना ही मेरे पेशे के लिए वो अच्छा होगा। ये अलग बात है कि पेशे से ज्यादा उससे पूरी जिंदगी में एक फर्क आ गया, क्योंकि it transformed the entire personality simply on the basis of a better sense of language. और इसका पूरा जो फाउंडेशन है वो है इस बात पर कि मैंने भाषा को अपना शौक बना लिया, कि शौक है, जी, शौक है। बहुत शौक है। अच्छी बात कही तो आपने। अब जैसे शौक वर्ड है, अब उसको मैं ओ को ओ कर दूं तो शौक हो जाता है ना, सही, शौक हो जाता सही। है, वो मोर्निंग हो जाता है। और शौक को मैं अगर शोक कर दूं तो उसके मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल, शोक निगाहें, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। सल्ट्री हो जाता है ना, आमिर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शोक यू आर राइट, यू अंग्रेजी आर में राइट। अगर मैं कहूं तो एम आई राइट, शौक, सल्ट्री हो जाता है। तो something that is, शोक, that is a kind of outrageous, something that actually hits your eye. शौक, जी, जी। हाँ, क्योंकि फिल्मी गानों में अब कितना कुछ सीखने को मिलता है। शौक वर्ड जो है फिल्मों में कितना यूज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको अपना शौक बना लिया, और उस शौक के चक्कर में आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ गजलें। मैंने गजलों को सुनना बहुत शुरू किया। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझ जैसे एक औसत इंसान ने, जो बम्बई, मैं हार्डकोर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, तो ऐसा भी नहीं जी, है कि मैं नॉर्थ से आया हूं, या मेरा परिवेश ऐसा रहा है। मेरे परिवार में किसी को गजलों का शौक नहीं है मेरे अलावा। तो सही। तो मैंने ये किया कि गजलों के मायने समझने की कोशिश की। तो जब आप मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिटवीन द लाइंस या उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स खुल जाते हैं। देन इट सडनली राइट, बिकम्स अ थिंग ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। मैं कई बार आमिर ये कहता हूं कि अगर हम ये कहें कि
ये जो शेर है, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपने घर की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। तो इसके मायने क्या हैं? तो मैं कई बार मैं भी जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं या वॉइस एक्टिंग का कोई ट्रेनिंग वगैरह की बात करें, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उर्दू भाषा में, बहुत मेरी एवरेज अंडरस्टैंडिंग है। पर हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप गजलों को, आप शायरी शेर को जो नज्म होती है उसको पढ़िए और उसके मायने ढूंढिए। मैं आपको एक और मेरा एग्जांपल देता हूं कि एक मूवी आई थी मन मर्जियां। जी। तो अब मन मर्जियां का मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड उसके सॉन्ग्स हैं, बहुत अंडररेटेड। इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी में बहुत बहुत अच्छी पोइट्री है गानों में। कि हाँ, तो उसका वो मुझे बड़े पसंद आ गए। या फिर आपकी बशीर बद्र की अगर कोई शेर है, बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं है, पर उनका शेर हो गया, या कैफी आजमी का कोई शेर हो गया। ये जो एक ले पर्सन जो देखता है ना, मुझ जैसे जो ले पर्सन जो देखते हैं, तो मैंने इनको पढ़ने की आदत बनाई, शौक बनाया। और अगर होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज है, जो भी आई माइट हैव गॉट दैट रॉन्ग, बट आप उस गजल को ही ले लें तो इसमें ढेरों शब्द हैं, ढेरों ऐसे अल्फाज हैं जो आप सीख सकते हैं, जिनके मायने समझिए। मुझे ऐसा लगता है आमिर की उर्दू जो है ना, मुझे ऐसा लगता है फॉर अ नॉन उर्दू पर्सन, उर्दू फॉर मी इज द लैंग्वेज ऑफ रोमांस। इट इज। मैं किसी से कहूं आई लव यू, और मैं किसी से कहूं मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मुझे लगता है ये उर्दू में ना, इसमें बहुत ज्यादा एक रूमानियत है, एक इट्स देयर इज समथिंग वेरी ethereal about it, and that's something that I have imbibed. तो अगर आपने, सॉरी मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, पर आपने मुझसे पूछा कि मैंने कैसे अपनी उर्दू पर या अपनी जबान पर काम किया, तो मैंने ऐसे काम किया। और मुझे लगता है मुझ जैसा अगर इंसान साधारण तरीके से थोड़ा सा, यू नीड टू, कहते हैं थोड़ा चतुर होना जरूरी है, सही, और शौक होना जरूरी है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि यार आप है ना, गजलें सुनो, कुछ मत करो, आपको इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है, फिल्मी गजलें सुन लो आप, मगर उसी से आप बहुत कुछ, क्योंकि जैसा आपने अरिजीत सिंह की बात कही, कितने अब हमारे सिंगर्स हैं जो बहुत बहुत कमाल का, जिनका तलफ्फुज़ है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, और व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम देम। मैटर ये करता है दर्पण, बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया कि जैसे अरिजीत सिंह के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत लोग अरिजीत को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अरिजीत को भी अच्छा लगेगा, अरिजीत जी को, कि अगर हम यहाँ बैठे वॉइस फेस्ट में उनके एक ऐसे एस्पेक्ट की तारीफ कर रहे हैं जो शायद कम लोग देखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मुझे क्योंकि वो लगता है बहुत हार्डकोर जरूरी है। बंगाली है, वो हार्डकोर बंगाली है, हाँ, बिल्कुल हार्डकोर बिल्कुल। बंगाली। और देखिए जबान, तो मुझे भी जब पसंद आता है, जैसे मैं अक्सर जब शायरी पढ़ रहा होता हूँ कहीं पे, तो मुझे जब पसंद आता है जब कोई बड़ा मेरी तारीफ करता है, जब कोई बुजुर्ग मेरी तारीफ करता है, वो कहता है कि आपका आपका पढ़ने का ढंग अच्छा था। तो मुझे लगता है हमारा एक तो फोकस इससे शिफ्ट होना चाहिए, जो मैं पहले 2-3 बार कह चुका हूँ, जो लोगों को शायद रेपिटेटिव भी लगेगा, कि आप किसको प्लीज, हु आर यू ट्राइंग टू प्लीज, and who do you want to be the right person to help you, to guide you, to actually understand you. ये बहुत जरूरी है कि वो आप कौन सराहे आपको। कैफी आजमी कहते हैं वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, यानी जो लोग फन रखते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिस्ट को कहते हैं अरबाब फन, वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, कदरे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद। तो जब मुझे सुखन अपने बात कहने का मुझे कद्र लोगों ने जब की, जब मैंने कहना छोड़ दिया, तो इस क्या सफर बात से है, गुजरने के बाद क्या कि जब बात मैं कहता रहा और फिर मैंने नहीं कहा, लेकिन जब बड़े लोगों ने मेरी तारीफ की, उसके बाद तो फिर सब तारीफ करने लगे। है। वो एक क्योंकि वैलिडेशन मिल जाता है। वैलिडेशन, आप तो हर इंसान को एक वैलिडेशन की जरूरत होती है। आई वुड से बिल्कुल, सीक योर वैलिडेशन इन द राइट सोर्सेज, कि सही हाँ, वैलिडेशन कहाँ से मिल रहा है चूज आपको। योर हीरोज, जिसको हम कहते हैं, चूज चूज योर योर हीरोज, हीरोज। करेक्टली, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने एक दो बातें कही जो मेरे बिल्कुल दिल को लगी जाके। एक तो माइंडफुलनेस की आपने बात की, उससे पहले हाँ आपने जी, शौक की बात की। तो वो शौक तो जाहिर सी बात है, अगर आप वॉइस ओवर हाँ जी, आर्टिस्ट बन रहे हैं तो हाँ जी, आप शौकिया काम ही कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल, सिर्फ
रेगुलर काम कर रहे होते तो आप एक डॉक्टर बन सकते थे, आप इंजीनियर बन बिल्कुल सकते बिल्कुल थे, आप कोई भी बैंकर बन सकते थे, आपको पैसे कमाना था, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री ही शौक पे बेस्ड है बिल्कुल कि बिल्कुल, क्या बात है। है ना, वॉइस ओवर हुआ एब्सोल्युटली। या हाँ, पेशा, सिंगिंग ये हुआ, पेशा पेशा बाद में है, पहले ये शौक है। तभी पहले तो ही हम शौक है। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट बड़े ब्लेस्ड होते हैं, बिकॉज हम एक बहुत एक छोटी ट्राइब है हु आर सो ब्लेस्ड कि हम वो करते हैं जिसका बिल्कुल, हमें शौक है, और जो उसे शौक हम होता पेशा है। भी कहते हैं। और हम बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहादुर हैं इतने कि हमने उस चीज रेगुलर, हाँ ये दर्पण मैं कहूंगा ये बात कि हम अपने आप, मैं अपने आप को, आपको और हम पूरी इंडस्ट्री को, जो लोग आर्टिस्ट हैं, मैं सलाम करता हूँ और मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि रेगुलर चीजों को छोड़ के, अच्छा ये आम आदमी की समझ में नहीं आता, कह रहे यार तुम तो अच्छी खासी नौकरी से 50-60 हजार 1 लाख कमा सकते हो, तुम ये इतनी मेहनत करके तुम 20-25 हजार रुपए कमा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन वो आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि उसके लिए, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी अहम चीज है कि वो उसमें अपना सब कुछ झोंक देता है, और वो 50 हजार के बदले 25 हजार भी ले लेता है और उसमें खुश होता है। तो जब आपका ऑलरेडी ये एटीट्यूड है कि आप एक शौक से आ रहे हैं, उसमें फिर आप ये बाधा डालें कि नहीं हम्म, यार मैं इससे ज्यादा नहीं सीखूंगा, ये तो गलत बात हुई। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ये बड़ी माइंड, बात आपने कही है आमिर, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इस काम को लेकर बोलने को, जो बोलना जो है, या वॉइस ओवर्स करना है, या शेर पढ़ना है, या स्पीकर जिसको हम कहते हैं, ये पब्लिक इमेजिनेशन में इट हैज सर्टेनली कॉट अ लॉट ऑफ फैंसी। पीपल आर बिकमिंग वेरी फैसिनेटेड, और यार लगने लगा है कि ये तो बड़ा आसान काम है और हमको बोलना ही तो है। तो ऐसे में ये कैवियट या ये एक डालना, डिस्क्लेमर डालना जरूरी है कि अच्छा, the अगर, other thing that, I'm sorry to हाँ interrupt you. जी, The नो other नो, thing that people come in into this industry, voice industry, artists trying to become artists, is also for the wrong reason. The wrong reason being shohrat and popularity, which is absolutely the wrong reason why you want to come here. Because अगर आपको सिर्फ पॉपुलर बनना है, try doing something else. कल ही मैं एक जगह बैठा होता, एक इवेंट की बात हो रही थी, और उन्होंने जो अपना फाइनल एक्ट रखा था, वो एक साहब को रखा था जो इज नॉट, मैंने जितना उनके उनके बारे में सुना और उनके काम को देखा, तो आई थॉट इट वाज प्रीटी मीडियोकर। तो मैंने उनसे कहा कि व्हेन यू आर ओपनिंग विद सच ग्रेट एक्ट्स, व्हाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल एक्ट विद अ मीडियोकर पर्सन? तो कहता नहीं यार, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और वो हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हमें भी बहुत फायदा होगा, उसको भी बहुत फायदा होगा। मैंने कहा आप फायदा नुकसान देख रहे हो आर्ट में? मतलब आपको तो ये करना चाहिए कि अगर आपने किसी से 500 रुपए का टिकट रखा है, तो उस 500 रुपए की वैल्यू आप उसे दो, बजाय इसके कि आप पॉपुलैरिटी में घुसने की वजह से या अपने पैसे। तो मैं इसमें उन लोगों को क्रिटिसाइज करूंगा जो, मैं समझता हूँ, हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे गुलजार दहलवी साहब, अभी कुछ वक्त पहले उनका इंतकाल हुआ। वो एक लफ्ज कहते थे तज्जार, या ताजिर का बड़ा आदमी, मतलब बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उसको तज्जार कहते हैं। थोड़ा अच्छा, ओके। इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में भी कहा जाता है कि ये तो तज्जार है, ये तो बिजनेसमैन है। तो हम्म, प्रॉब्लम ये हो गई दर्पण, आप शायद मुझसे इस बात से एग्री करें कि बहुत सारा आर्ट जो है वो तज्जारों के पास चला गया है, मैं जिनको समझता हूँ। आर्ट से मतलब नहीं है, जिनको आर्ट की मतलब एग्जैक्टिट्यूड से मतलब नहीं है, उनको मतलब है पैसे से। तो ये एक गलत ट्रेंड हो गया है जो काफी वक्त से रहा है। जाहिर सी बात है, व्हेनेवर कॉमर्स कम्स इनटू आर्ट, तो वो आर्ट या को बहुत मुगल आजम और उमराव जान जैसी मूवीज बनने नहीं देता, फिर वो वैसी मूवीज बनने देता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन मूवीज हो, आर्ट हो, जो भी हो। तो मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे कि माइंडफुल होना बहुत जरूरी है अपने खुद के चाहतों का, कि आप क्या चाहते हैं। Do you want to be a good voiceover artist, or do you want to be a well-paid voiceover artist? What do you want? If you want to be a I good, a think the I genuinely, think I think the right answer should be, one should be a good artist so that one can then be a well-paid artist as well. true, very true, very That true. should be a byproduct. That should be a byproduct. Yes. You तो should be चक्कर paid for यही the हो रहा right है ना reasons. आजकल। हाँ हाँ, यही चक्कर हो रहा है ना। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जी, जी, जी। हाँ, तो मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं।
तो उर्दू के अगर हम पर्टिकुलरली उर्दू की बात करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सेम थिंग्स दैट यू गाइस वर ब्रिलियंटली टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट सेशन आई वाज लिसनिंग इन, एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन. तो उर्दू में मुझे लगता है कि हम, अगर आप इस मरहले से पार कर चुके हैं इस मरहले को कि मैं अब सीखना चाहता हूँ, तो फिर आपको नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? आपको एक टीचर चाहिए, आपको एक सीखने का जरिया चाहिए. और जैसे आपने खुद कहा कि स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इजीली. आप होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इसमें कम से कम आप होश वालों, खबर और बेखुदी और बिल्कुल. चीज, 4 वर्ड्स तो आप इसमें सीख गए कि वो, एब्सोल्युटली. तो आप उस तरह करें. और वहाँ पे फिर इफ यू सीकिंग टू लर्न, तो कोई उसमें बाधाएं नहीं आती, कोई अड़चने नहीं आती. आपको कोई अच्छा सा उर्दू का पेज भी मिल जाता है, आपको अच्छा सा उर्दू का बिल्कुल. टीचर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है. आपकी बस जहाँ चाह वहाँ राह. मतलब ह्यूमन विल बिल्कुल. जो है वो इतनी स्ट्रांग चीज है दुनिया में. वो शाहरुख खान का जो मूवी थी कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने से की साजिश में लग जाती है. तो वो चीज मैंने खुद अपनी जिंदगी में होती हुई देखी है. और मैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने सवालात रखें. बीन डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हाँ, मुझे हाँ, ऐसी बिल्कुल. लगता है मैं, कि हाँ, बिल्कुल. अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है. मैं 2 दिन अपने ही शेर पढ़ देता हूँ, ताकि आपने पहले भी कहा था कि कुछ पढ़ने के लिए. तो बिल्कुल, बिल्कुल. मैं चाहूंगा कि आज आप पढ़ें. और बिल्कुल. शायद इससे कुछ सुनने में आपको भी कुछ, दर्पण आपको भी, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, कुछ कनेक्ट कर सकें. तो एक शेर है यूं ही कि एक डंडी पड़ी है पानी में, एक डंडी पड़ी है पानी में, मछलियां भी हैं इस कहानी में. और वक्त को देखकर हुए शागिर्द, हम भी उस्ताद थे जवारी में. और किस्सा दर्द का जो टूटा बांध, मिल गया शहर सारा पानी में. और अब मैसर कहाँ हमें साया, है तैनात सायबानी में, यानी साया देने में. आप तो आपसे ज्यादा हैं अपनी छोड़ी हुई निशानी में. एक मौसम बदल गया देखो, एक लम्हे की रायगानी में. और कितने इम्कान साथ थे आमिर, जम हुए मर्ग नागहानी में. तो बहरहाल ये गजल थी. और इस तरह मैं कुछ लिखता भी हूँ. मैं इंशाल्लाह जब 17th को आऊंगा मुंबई, तो वहां भी कुछ ना कुछ दर्पण आपको भी सुनाऊंगा और लोगों को भी सुनाऊंगा. बिल, लेकिन बिल्कुल. उर्दू में, इफ आई हैड टू एंड दिस सेशन, माय पार्ट ऑफ इट वुड बी कि आप सबसे, नंबर 1, इफ आई कुड गिव आउट 4 or 5 पॉइंट्स. नंबर 1, आप जो चीज सुनते हैं उसको समझने की कोशिश करें. जैसे दर्पण ने भी कहा कि यू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट you're hearing, and very mindful of whether what you're hearing is right or wrong. तो आपने कुछ भी जरा सा गलत सुना, आप अपने आप को सही करने की कोशिश करें. और फिर मैं जैसे करता हूँ, जैसे मैं, ये लफ्ज है गलती लफ्ज मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि मैं पहले इसको गलती बोलता था या गलती बोलता था. जब से मैंने ये सुना कि ये लफ्ज गलती है, गलती, तो मैं जितनी बार भी मेरे सामने ये लफ्ज आएगा मैं उसको रिपीट करता हूँ. मैंने अगर गलत भी बोला, मैं बोलूंगा गलती. तो उससे धीरे धीरे वो आपकी जबान पे चढ़ जाता है. ज्यादा से ज्यादा होगा कि कोई आपका एक आध बार मजाक उड़ा देगा कि अरे यार तुम ये तो बड़ा टिपिकल बोलते हो यार. तो आप बोलो, हाँ मैं तो टिपिकली बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, मुझे सही बोलने का शौक है. तो इससे ही आपका सफर शुरू होता है. उसके बाद फिर वो गजलें आती हैं जो आप सुन सकते हैं, वो कलाम आता है, वो बातें आ सकती हैं, एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होती है. जहां भी आप बात करते हैं, कोई ऐसा लफ्ज कोई बोलता है, आप उसको जहन में रख लेते हैं कि हाँ मैं ये अब इसको सही बोलूंगा. और आपके रेगुलर वॉइस ओवर के काम में जब आप कोई ऐसे वर्ड्स देखते हैं, तो आई वुड से कि आप स्क्रिप्ट में उसको अंडरलाइन कर लें. और अब तो रेख्ता डिक्शनरी जैसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, गूगल ट्रांसलेट जैसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसको आप सुन के देख सकते हैं कि ये लफ्ज कैसे बोला जाता है. और अगर आपका जो जिसने आपको स्क्रिप्ट दी है, मुझे लगता है कोई बुरा नहीं मानेगा अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह पढ़ना चाहता हूँ, ये सही है. सब चाहते हैं जनरली ऑन एन ओवरऑल बेसिस, कि जो प्रोड्यूसर भी है वो भी चाहता है कि अच्छी चीज और प्रीमियम चीज जाए, बजाय इसके कि काम चलाऊ चीज जाए. तो आप काम चलाऊ को छोड़ के सही चीज पे फोकस करें. आप उर्दू भी सीख जाएंगे, आप उर्दू वॉइस ओवर्स में भी पक्के हो जाएंगे. और मुझे भी दुआएं देंगे, दर्पण को भी दुआएं देंगे. और आई थिंक एक बात बड़ी जरूरी है कि वक्त दें. जी, वक्त दें. और ये नहीं कि, क्योंकि भाषा, आई एम श्योर यू एग्री विथ मी आमिर, की मैं एक ये एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ सालों से, बड़े लंबे समय से, कि भाषा
किसी भी भाषा पर पकड़ पाना या भाषा के साथ एक दोस्ती करना मतलब एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में True. एंटर करने जैसा है। ये बम्बल या टिंडर की डेट नहीं है, या ये वन ऑफ आपका कोई रेजिंग Nicely अफेयर। put. ये आपको आपको एक बड़ा एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, लंबा रिश्ता कायम करना पड़ता है, आपको अच्छा बुरा वक्त एक साथ देखना पड़ता है, तब जाके कोई रिश्ता जो है वो एकदम पक्का होता है। तो उसी तरह भाषा को लेकर भी अगर हम उर्दू की भी बात करें, यू कैन स्टार्ट स्मॉल लाइक आई स्टार्टेड। I'm still small. I'm still looking at the most basic things like enjoying lovely poetry, enjoying lovely ghazals, be mindful। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो ध्यान रहे कि गलती करें और गलती नहीं करें, और फिर को फिर बोलें, सफल को सफल बोलें, हाँ सफल नहीं बोलें, फिर नहीं बोलें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे वॉइस ओवर्स में भी कोई बहुत कठिन या बहुत कड़े शब्द नहीं आते हैं। ज्यादातर जी जी आम बोलचाल के ज्यादातर वर्ड भी वही आते हैं। बोलचाल के वर्ड आते हैं। खून हो गया, खुदा हो गया, ख्वाहिश हो गई, हाँ या फिर राज हो गया, जिंदगी हो गई, और जुल्म हो गया। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रेखता की आपने बात की, रेखता की वो उस बड़ा कमाल का रिसोर्स है, जी और इट्स एन अमेजिंग रिसोर्स। और सुनिए अच्छे अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, आई थिंक दैट्स व्हाई यू मेंशन दैट चूज द पीपल दैट यू वांट टू लर्न फ्रॉम। ट्रू ट्रू मुझे बड़ा ट्रू मजा आता है, जैसे राहत इंदौरी साहब। जी अब he was again, God bless his soul, but I each to his own, I loved him for his style, क्योंकि स्टाइल उनका इतना ड्रामेटिक स्टाइल होता था कि आज साहब उनकी मिमिक्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा मजा। तो इफ यू एंजॉय लिसनिंग टू समथिंग, दैट देयर इज नो बेटर वे टू लर्न देन बाय एंजॉयिंग लिसनिंग टू समथिंग। क्योंकि अगर आप अभी अभी उर्दू भाषा से आपकी दोस्ती हो रही है, आपका परिचय हो रहा है, और आप बहुत हैवी शायरी पढ़ने लगेंगे, तो आप हाँ वहीं से आप उतना मुश्किल मत डिसइंटरेस्टेड हो बनाइए अपने जाएंगे। लिए हाँ उतना मुश्किल हाँ मत बनाइए आपको अपने लिए आपको जगजीत सिंह साहब पसंद है तो उनकी गजलें सुनिए, उनकी उनकी नदीम उनकी समीर गाई हुई सुन लीजिए गजलें सुनिए। गुलाम हाँ अली को सुन बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। आप गुलाम म्यूजिक अली, इज गॉड मेहदी गिफ्ट हसन को सुन लीजिए। जी बिल्कुल, कितनी अच्छा दर्पण एक सारी चीज चीजें। मैं और ऐड हाँ करूंगा जी। कि आप जो बात कह रहे थे कि माइंडफुल हम उर्दू को लेके आप ये देखिएगा कि लोग ऐसा नहीं है कि उर्दू जबान को लेके माइंडफुल नहीं है लोग जनरली भाषा को लेके माइंडफुल नहीं है इंग्लिश में भी अब कोई हम्म। चाहता नहीं है कि बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हिंदी में भी नहीं चाहता कोई कि बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हम जमाना ऐसा आ गया है या पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसी दुनिया में आ गए या वैसे जमाने में लोग बिल्कुल दे वांट टू यूज द मोस्ट बेसिक ऑफ वर्ड्स and they want to abbreviate everything. It's TBR or it's LOL, it's ROFL. They don't want to say the words out loud. I don't understand why this is, but this is how what the case has become now. And इस चीज से आप सिर्फ अपनी उर्दू तो छोड़िए उर्दू तो एक चीज है आप जनरल नुकसान कर रहे हैं आपका आप एक अपनी बिल्कुल ही बिल्कुल। आप मतलब एक पॉइंट आएगा कि आप सिर्फ इशारों में बात कर रहे होंगे इस मामले में आमिर, आई एम प्राउड टू बी वेरी ओल्ड स्कूल, और इट रियली इरिटेट्स मी जब हम टेक्स्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आई एम हैप्पी टू बी ओल्ड स्कूल, आई एम हैप्पी टू बी अ प्योरिस्ट इन दिस, आई एम हैप्पी टू बी एब्सोल्युटली ऑर्थोडॉक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई खूबसूरत लफ्ज यूज करें या कोई बहुत ही गरीब वर्ड यूज करें, आपका ₹1 ज्यादा नहीं लग रहा है। कुछ It नहीं does लग रहा not cost you anything to use nice words or to use nice language. उल्टा And वो ₹1 दे if जाएगा शायद आपको बिल्कुल दे जाएगा, हाँ बिल्कुल। हमें हमें ₹1 से ज्यादा ही दे रहा है। तो सही हमारे हमारे काम में, व्यवसाय में, आई थिंक हम जैसे लोग जो आज अगर आप देखें तो भाषा को लेकर बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई बार है कि जनरल स्टेटमेंट है मेरा ये, ऑब्वियसली। बट जिन्होंने ध्यान रखा है भाषा को लेकर, अपना थोड़ा सजग रहे हैं या माइंडफुल रहे हैं, एंड इफ दे हैपन टू एंटर अ क्राफ्ट लाइक दिस where they are performing as a speaker, so it adds so much to their so much value so much to value their armor. This is the best true ammunition you true can have. So I think that is one common thing that we can definitely agree on.
that like you said, if you are willing, अगर चाह है तो राह है, और चाह नहीं है तो आप लोगों को डीएम करते रह जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. So I don't, the world, I always use this line, Amir, very often. The world does not owe you anything. True, true, Hmm. true. तो बल्कि ये बड़ा to जरूरी add to है. that, I would say Nietzsche's very famous quote कि the world bends. It's something like this कि the world bends Hmm. to give way to the person who knows where he is going. Absolutely, absolutely, absolutely. That's so true. That's so true. जावेद हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ नजर नहीं आता उसके तसव्वुर के सिवा, हसरत दीदार आंखों को अंधा कर दिया. बाय हैदर अली आतिश. सॉरी, ये थोड़ी सी स्क्रीन दूर है और चश्मे के बावजूद मैं साफ. आई होप जावेद मैंने ये सही पढ़ा है. मुझे नहीं पता कि आमिर के सामने ये कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं. नहीं, मेरे पास नहीं आ रहे. अच्छा, आमिर, किसी ने एक सवाल पूछा है, क्वेश्चन फॉर आमिर सर. While greeting people, when do you use salam alaikum and when do you use adab? ये अच्छा, I पूछ can रहे see हैं. the questions now. I can see the हाँ जी, हाँ जी. the comments, and Right. I would say assalamu alaikum is a general greeting जो सबसे पहले मिलके दी जाती है. So you say assalamu alaikum basically means peace be upon you. ये आदाब इज एन उर्दू कल्चरल ग्रीटिंग जो कभी भी यूज हो सकती है. तो आप जाते हुए भी कह सकते हैं, आते हुए भी कह सकते हैं. आदाब अर्ज है, आदाब, एंड यूजुअली वो इस हाथ के साथ, इस जेस्चर के साथ यूज होता है. तो दैट्स हाउ इट इज जनरली. जाते हुए जनरली खुदा हाफिज कहा जाता है, मे गॉड बी विद यू, मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर. ये एक उर्दू कल्चर का हिस्सा है जी. हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अपनी अच्छी, क्योंकि मुझे लगता है खुदा हाफिज ये भी इतना, मतलब इस कई बार लोगों को पता नहीं मतलब क्या है, मायने क्या है कि खुदा जी, आपका जी. हाफिज रहे, कि जी. मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर. या फिर अगर हम जब हम गुड नाइट कहते हैं उर्दू में, शब्बा खैर कहते हैं हम. तो जी. शब्बा खैर कहते हैं. मैंने फनीली मैंने ये रियल में हुआ है, मैंने रेडियो पर सुना है सवेरे, ओके एवरीवन बाय बाय शब्बा खैर, क्योंकि द वर्ड हैज अ नाइस रिंग टू इट. Yes. तो हम ये वंडर नहीं कर रहे कि हम गुड नाइट सवेरे कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये लोगों ने वही लिखा है, इसके मायने लिखे हैं. मुझे एक गजल याद आई, जो बड़ी मेरी पसंदीदा है. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के फुर्सत के रात रात दिन, दिन. हेलो. बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए. तो मुझे याद है, मुझे बड़ी बड़ी पसंद हमेशा रही है ये गजल. तो बट शायद मुझे एक वक्त था जब मुझे इसके मायने नहीं पता थे. फिर जब जी. पता चला तो मैंने कहा यार मजा आ गया, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि आप बैठे रहें तसव्वुरे जाना, रिमेम्बरिंग योर बिलवड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हाँ, अपने 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 अपनी बिलवड मोहब्बत का का तसव्वुर तसव्वुर करते कर, हुए बैठे रहें. तसव्वुर. जी. हाँ, तो जब क्या हो, यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप जो लोग उर्दू को लेकर, जिनको शौक है कि हमें उर्दू को बेहतर समझना है, तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए कि सही. आप उसको ट्रांसलेट उस भाषा में कीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है. या हिंदी हो गई या अंग्रेजी हो गई. जैसे हमने यहाँ कहा कि दिल ढूंढता है, आई रिमेम्बर दोस लवली days of relaxation when I would just sit back and think of my beloved and remember ट्रू, the ट्रू, love of my ट्रू. life. बल्कि तो आपको बहुत अगर आप ट्रांसलेशंस इसको, अवेलेबल हैं. मैं अभी, हाँ आई एम सॉरी टू बिल्कुल इंटरप्ट यू. बिल्कुल, नहीं नहीं आपको, प्लीज. मैं अभी रेख्ता में गया था. वहां पे आई सॉ कपल ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ गालिब एंड ऑफ मेनी अदर पोएट्स, जहाँ पे आपको अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं भी आती तो वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड ईच जो वर्ड, जो उसमें ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आता, उसको एस्टरिस्क करके नीचे साइड में लिखा हुआ है या मार्जिन्स में लिखा हुआ है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न. उसकी कोई कमी नहीं है. मुझे लगता है कमी सिर्फ इस चीज की अगर हो सकती है तो वो है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या मैं मेहनत नहीं कर रहा. ऐसा हो सकता है, वरना एक बार बिल्कुल आप. जी. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ रिसोर्सेस आप अगर आप बता दें तो मे बी पीपल कैन, जैसा आपने अभी जिस बारे में बात की, आई वुड लव टू रिफर टू दैट. ये रेख्ता पर है ये जो आप कह रहे हैं? रेख्ता पे तो वेबसाइट पे है ही. रेख्ता के अलावा हाँ जी, रेख्ता.org आप सर्च कर सकते रेख्ता हैं. डॉट हाँ ORG मेरे ख्याल ORG, से, जी. आप है रेख्ता ना? डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आप वर्ड्स जो है वो ओके. सर्च कर सकते हैं. आप मेरी इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं जहाँ पे आप सुन के, और जो बात हमने की थी कि हम सुन के सीखते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत हाँ सारी जी. रील्स में बनाता हूँ जो आप शायरी पढ़ता हूँ,
लोगों के साथ इंटरव्यूज लेता हूँ, तो वहाँ पे आप सुन के बहुत कुछ, मुझे लगता है आप अगर सीख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से कुछ सीख सकें। और उसके अलावा किताबें तो है ही, आप अमेज़न पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप वहाँ पे उर्दू बुक सर्च कीजिए। आप इवन रेख्ता की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे भी जो बुक्स उनकी अपनी पब्लिकेशंस हैं, वो आप, अभी मैं रेख्ता गया तो वहाँ पे बहुत सारी उनकी अपनी पब्लिकेशंस मौजूद थी, जो हिंदी लिपि में लिखी हुई थी, तो वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आई थिंक या डिक्शनरीज़ तो बहुत रेख्ता बढ़िया। डिक्शनरी है, प्लैट्स की डिक्शनरी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। गालिब कोलंबिया अगर आप सर्च करेंगे तो या गालिब फ्रांसिस प्रिचेट एक रिसर्चर हैं जिन्होंने गालिब पे काम किया है, और वो ऑनलाइन वो पूरा रिसोर्स अवेलेबल है। गालिब फ्रांसिस प्रिचेट आप सर्च कीजिएगा तो आपको गालिब की सारी शायरी का जो एक्सप्लेनेशन है और जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो मिल जाएंगे। ऐसी किताबें मिल जाएंगी आपको, तो आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं @urdudan, वट एग्जैक्टली जो आप सर्च कर रहे हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं amir@urdudan.in पे, कि हाउ अमेजिंग, आप थैंक यू मेरा आमिर। पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और उसमें जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे मेल कीजिए, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। और आमिर कोर्सेज भी रन करते हैं, तो अगर आप आमिर से कनेक्ट करें उर्दू दान पर, आई एम श्योर ही कैन आल्सो हेल्प यू विद जी, दैट। मेरे पास और एक आपने, उर्दू पोएट्री का कोर्स है, मेरे पास एक उर्दू स्क्रिप्ट अच्छा, का कोर्स है, तो आप वो 2 कोर्सेज़, हमें बहुत जल्दी एक वोकैब्युलरी का और एक एडवांस्ड उर्दू का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, तो यू कैन जॉइन दोज़ एज़ वेल। हाउ लवली, हाउ लवली। आपने रेख्ता की बात की, तो मुझे याद आया कि हाल ही में रेख्ता वालों ने एक हजारों ख्वाहिशें ऐसी जी, डिजायर बॉक्स लॉन्च किया था। जी, आई वाज जी, वन ऑफ द मैं मुझे आई वाज वन ऑफ द खुश नसीब पीपल हु मैनेज टू गेट दैट, क्योंकि लिमिटेड आई थिंक पीरियड के लिए था। तो वो भी बड़े जी। कमाल का वो बॉक्स है जिसका नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अगेन वो भी जो गालिब की जो का जो लिखा हुआ है कि हजारों, गालिब का ही लिखा हुआ है ना, सॉरी गालिब का ही आमिर। लिखा हुआ है, जी, हाँ बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ, हजारों हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी लेकिन कम फिर निकले। भी इसके कम निकले। इसका इतना डीप मीनिंग है। तो जी, आप मतलब अगर आप सच में शौकीन हैं, तो आप मतलब इसका भी, इसमें कितनी कितनी डेप्थ, इतने लेयर्स हैं। दैट इज द ब्यूटी अबाउट अबाउट शायरी, कि इतने लेयर्स होते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितने आप लेयर्स कहाँ तक अनरेवल उतरना करते हैं, चाहते हैं? बिल्कुल। कहाँ तक उतरना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेडरिक डिमेलो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या उर्दू में रैप भी किया जा सकता है? आई सी नो उर्दू में रीजन रैप व्हाई हो रहा नॉट। है एक्चुअली, हाँ, हो उर्दू रहा में है। रैप हो रहा है, जो इवन मुंबई में रैप हो रहा है वो तो हिंदी उर्दू मिक्स्ड है, जो हाँ एमसी जी। स्टैन कर रहे हैं या और भी बहुत सारे राइट। आर्टिस्ट कर रहे हैं। डिवाइन कर रहा है, नेजी कर रहा है। लेकिन इवन पाकिस्तान की तरफ आप देखिए, तला अंजुम जो अंजुम ब्रदर्स हैं, ये लोग रैप कर रहे हैं। मीशा ओके शफी का ओके। भाई है, फारिस शफी, वो रैप कर रहा है। और रैप तो किसी भी जबान में हो सकता है, और रैप तो इतना प्यारा आर्ट फॉर्म है, प्यारा तो नहीं कह सकता मैं, इतना फुल ऑफ अग्रेशन आर्ट फॉर्म है। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं रैप सुनता हूँ कि मेरे अंदर का अग्रेशन को आवाज मिल जाती है रैप में। क्या बात है, हाउ नाइस। एक सवाल और ले लेते हैं। आर्टिस्ट नवनीत कुमार का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस बारे में मैं भी, मेरे पास भी कुछ कहने को है, पर मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा। ये पूछ रहे हैं कि जब उर्दू, जब हम बात करते हैं, कोई जब हम कोई स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं जिसमें उर्दू के शब्द बीच में हो, तो कई बार ये कहते हैं जब वो शब्द आता है तब ये ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, तो थोड़ा ऑड साउंड करता है। आई होप नवनीत, मैं आई एम गेटिंग इट राइट। तो वो कह रहे हैं कि वो ऑड साउंड करता है। हाउ कैन वी डू इट इन अ फ्लो, कि अगर तो एक स्क्रिप्ट है आपको, तो। हाँ जी। मैं समझता हूँ इसमें उसको अलग से साउंड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है, इसमें कह रहा है कि खुदा की बात हो रही है कि हम मानते हैं कि खुदा हम पे मेहरबान है। ठीक है, अब यहाँ अब 2 अल्फाज आ रहे हैं, खुदा और मेहरबान। अब अगर आप स्ट्रेस देके पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाकायदा यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स यू आर रीडिंग। हम मानते हैं कि खुदा बहुत मेहरबान है। नो, ऑब्वियसली इट विल साउंड ऑड। So you read it enough times, maybe 10 times, 20 times, however long it takes you to get it right. But आप इसको इस तरह बोले कि हम मानते हैं कि खुदा मेहरबान है। वो तो फिर आपकी प्रैक्टिस से ही आ सकता है, उसका कोई और सेकंड कोई रास्ता नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आमिर। इसके बारे में मेरा भी जो ओपिनियन है वो सिमिलर ही है। मैं इसको लेकर कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम किसी भी भाषा पर काम करते हैं तो हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। जी, पहला जी। स्टेज वो होता है जब हम शब्दों का गलत उच्चारण कर रहे हैं।
कि आपने जो एग्जांपल दिया, हो सकता है पहले हम इतनी वीक है हमारी सेंस ऑफ लैंग्वेज कि हम कहें मैं जानता हूं कि खुदा मेहरबान है, मैं जानता हूं कि खुदा हो गया, नुक्ता नहीं लगा, मेहरबान महरबान हो गया। पहला स्टेज है जहां पर योर उच्चारण या आपका वेरी वेल प्रोनाउंसिएशन पुट। है। दूसरा स्टेज जब आप उस पर काम कर लेते हैं तो दूसरा स्टेज आता है जब you are getting the pronunciation right, but you are putting a lot of effort and you are very conscious that you are getting it right. तो जब नवनीत जिस स्टेज की बात करें वो सेकंड स्टेज है। जैसा आपने कहा कि अगर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं मतलब आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं सही कह रहा हूं। सही और फिर कह रहा हूँ तीसरा स्टेज आता है जब आप सहज हो जाते हैं, जब जी, आप फ्लो आ उसी तरह जाता है बात करते हैं, हाँ, जैसे वो आप ही की भाषा हो, तो अपने जी आप जोर देना कम हो जाएगा। तो जैसा आमिर ने कहा कि प्रैक्टिस जितना करें, प्रैक्टिस करने से फेमिलियरिटी आती है और आपके शब्दों का जो साउंड है वो आपके जहन में उतर आता है, और उसके बाद जब जहन में जो चीज उतर आती है फिर वो जबान पे जब आती है तो वो ऑड नहीं साउंड करती है, डजंट मेरे साउंड लाइक साथ ट्राइंग टू हार्ड। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ मैं मिर्ची में था तो हमारे साथ एक आरजे थी, आरजी सुकृति, और मैंने उनको देखा कि शी डजंट कम फ्रॉम एन उर्दू बैकग्राउंड, बट उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस से और अपने शौक से वो भोपाल में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने दुबई में भी काम किया, मिर्ची में ही, और फिर वो वापस आके फिर भोपाल में काम करने लगी, एंड शी वाज सो फ्लुएंट विद उर्दू एंड शी वाज सो प्रॉपर विद व्हाटएवर शी वाज सेइंग कि उनको अलग से उसको करना नहीं पड़ता। तो मैंने पूछा था उनसे कि आप इतना फ्लो में कैसे बोल लेती हैं, सिंस इट्स नॉट इवन पार्ट ऑफ योर, इट्स नॉट योर नेटिव टंग। तो कहती मैंने बस बोला है, शौक है मेरा, मैं बोलती हूँ, जहां भी मैं दोस्तों में भी बोलती हूँ, मैं दोस्तों में भी बोलती हूँ, चाहे कोई समझे ना समझे मैं तो बोलती हूँ। तो बोलते बिल्कुल बोलते ही मतलब ये चीज परफेक्ट की जा सकती है, और जैसे आपने खुद उसको बिल्कुल तीन कम्स बैक टू द एस्पेक्ट्स में, सेम थिंग कि बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, तो वही वाली बात है, जिस तरह आपने, और मैं एज़ अ सीनियर वॉइस आर्टिस्ट मैं आपको अपना सीनियर मानता हूँ, मानने वाली बात नहीं है, आप हैं भी अरे मुझसे। प्लीज। तो मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई मेरे इसी सेशन में मैंने जो ऐड किया, उसके साथ-साथ जो आपने बातें बताई, खास तौर से माइंडफुलनेस हुई, ये सारी चीज़ें, और जो 3 उसके जो आपने उसको कैटेगराइज़ किया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें इस सेशन का मुझे लगता है दे फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन। जो मेरा पार्ट था वो मेरा पार्ट था, लेकिन दर्पण आपने भी बहुत ऐड किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं नहीं आमिर, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, और आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं, जिनमें से जो भी लोग 17 तारीख को आ रहे हैं, दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और हमारे तो यहाँ पर सो एम आई। आपके काफी मुरीद हैं, और जो लोग हमारे ऑफिस में ही, हमारी टीम में ही आपके काफी मुरीद हैं, और जो लोग देख रहे हैं, मुरीद का मतलब फैन होता है, तो इनके बड़े, वैसे तो इनके ढेर सारे फैन हैं। जैसे मैंने कहा, इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसी पर 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं। और जावेद पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं अपनी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करता हूं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, और अभी जैसा इन्होंने उस आरजे उन मोहतरमा की बात की कि उनकी भाषा को लेकर, उर्दू को लेकर, मेरा भी वही है। मैं शौक से सुनता हूं और बोलता हूं और पढ़ता हूं। जितने शौक के साथ आप करेंगे, अगर आपसे कोई कहेगा कि ये काम है तो आप नहीं करेंगे। जब कोई चीज आपकी शौक बन जाती है, आपका शौक बन जाती है, तो फिर आप उसको मजे से ऑटोमेटिकली यू गेट बेटर, एंड इट इज अ जर्नी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू आमिर, आप हमारे साथ जुड़े आज, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू ऑन स्टेज ऑन द 17th, जहां पर हमारी पूरी इंडस्ट्री के सैकड़ों लोग होंगे, एंड आई एम श्योर दे विल ऑल्सो एंजॉय लिसनिंग टू यू। सो 17 तारीख को 17 मुलाकात तारीख होगी। को मुलाकात होती है। मैं इसमें बिल्कुल। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपने शौक की बात की तो एक साहिबा है, उनका शेर है कि शौक को आज़िम सफर रखिए, यानी सफर का डिटर्मिनेंट रखिए, शौक को आज़िम सफर रखिए, बेखबर हो के सब सब खबर रखिए। तो क्या ये तरीका क्या है बात है, जी। वाह, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू सम अप दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच आमिर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस। आपने अपने हैंडल का नाम और कंपनी का नाम और अपना जो नाम है उर्दू दान बहुत सही रखा है, क्योंकि आप बहुत जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग। सो थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। यू टू दर्पण, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, थैंक यू सो बाय मच। बाय। कैसा लगा आपको आज का हमारा उर्दू जबान का सफर?
आप आई होप आप लोगों को पसंद आया। आमिर अजहर खान फ्रॉम उर्दू दान, इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस जबान को लेकर हमसे बातें की और बड़ा मजा आया इनसे बात करके। और आप लोगों के कमेंट्स देख के भी लग तो यही रहा है कि आपको भी बड़ा अच्छा लगा। सो आई थिंक एक बड़ी सीख इस सेशन की यही रही है कि आप में से जो लोग उर्दू भाषा पर स्पेशली काम करना चाहते हैं, सुनना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों को सुनना शुरू कीजिए, अच्छे शेर पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छी गजलें सुनना शुरू कीजिए, उनके मायने समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट डेवलपिंग अ लव फॉर द लैंग्वेज ऑफ रोमांस विच इज उर्दू। और 17 तारीख को आने की कोशिश कीजिए ग्रैंड फिनाले में। अगर आपने अभी तक डेलीगेट पास नहीं लिया है तो साहब ये QR कोड है, आप इसे अभी भी स्कैन करके डेलीगेट पास ले सकते हैं अगर आप बम्बई आ रहे हैं या बम्बई में हैं तो। थैंक यू, आपके बहुत प्यारे प्यारे मुझे रिस्पांस मिल रहे हैं। स्पंदना मेहता, वॉइस ओवर जावेद, वॉइसेस बाय, सॉरी थोड़ी नजर कमजोर है या स्क्रीन बहुत दूर है, दीपा, यश, नवनीत कुमार, अनिल कुमार, बड़ा अच्छा लगा आप लोग जुड़े। आज की शाम जो है यहीं, आज का सफर, आज की शाम का सफर यहीं तक का है। कल होगा 7वां दिन इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 के इस महोत्सव का, और बड़ा लंबा सफर है पर सफर का आगाज इतना शानदार हुआ 7 तारीख को विद दीज ऑनलाइन सेशंस, और हम अंजाम पर पहुंचेंगे 17 तारीख को रविवार को, इतवार को, 17 दिसंबर को मुंबई में रंगशादा ऑडिटोरियम में। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है महीनों से इस कार्यक्रम को आप तक लाने के लिए। ये भारत का पहला, इकलौता और सबसे बड़ा वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस और अवार्ड्स का मंच है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय नेम इज दर्पण, आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट, एंड a big thank you from my team, and you have a good evening. I'll see you tomorrow evening. I think we have session starting at 7 p.m. tomorrow. 7 p.m. right? 7 p.m. We have the voice actors roundtable at 7 p.m. तो कल मिलते हैं, ठीक है? अब आप लोग भी खाना वगैरह खाइए, 8 बज रहा है। कल मिलते हैं, बाय।